Okay. So, Assalamu alaikum, fellows. Before we start, we had a news, very tragic news from Karachi. A lot of lives lost today in a plane crash. Um, I would request all of you, let's spend 1 minute, say Fatiha and for the families and the people who died in the plane crash. Fatiha. So I will start with the introductions of all the panel members. Today's session is very important because nowadays, after this COVID pandemic, there has been a lot of focus by the tech community on the skill development, learning, relearning, looking at what they're missing. Some people are looking for new job or job changes. Some people are just looking to get to the next level. So we have seen a lot of activity in this area, skill development, whether this is personal growth, whether this is organizational level. So we felt this is about time we discuss this with the industry veterans. We have a very interesting panel today. Some of the best people in Pakistan, I would say, when it comes to skill development, most knowledgeable. And so I would first of all like to introduce all the panel members. And I would request the panel members to introduce themselves to the audience so that they can connect their experiences with the role of skill development. So I will start with myself. My name is Sayed Ahmad. I am CEC member in Pasha. I also run a software development company called DPL, which is a IT outsourcing company. I would start with Yasir and then Sayyid Ali, Asim, and if we have Faiza with us as well. So Yasir, can you introduce yourself? Thank you, Sayed. Thank you for inviting us to this panel. My name is Yasir Bashir. I run a company called Artisoft, which is a mid-sized software company based out of Lahore. And we've now been in existence for close to 12 years. And as I tell people, while there is a need for skill building and revamping your skills all the time in pretty much every industry, in our industry, it's completely indispensable. So I'm really grateful for this session and for the opportunity to share with everybody how we think about skill building and also to learn from others how they're thinking about it. I will go to Sayyid Ali, who's joining us from California. Ali. अस्सलाम वालेकुम। तो मैं सीईओ सनराव्स, मैं पाशा के अंदर सीसी मेंबर और वाइस चेयरमैन भी हूँ। सनराव्स 2011 में शुरू हुई थी और इसके अंदर द फोकस जो था वो एक प्रोडक्ट का था कि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होंगे और हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं और हमारे कस्टमर बेस प्राइमरीली नॉर्थ अमेरिका का है, ranging from a number of Fortune 500s like 3M, Disney, CNN to a number of startups like OLX, Khan Academy. और ये सारा काम जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बैठ के किया है। कैलिफोर्निया में तो अभी आया हूँ मैं। तो that's about it. Asim. अस्सलाम जी, मेरा नाम आसिम अफार है। मैं इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 17 प्लस ईयर्स हो चुके हैं। सो प्रीवियसली आई हैव वर्क विद LMKR। उसके बाद मैंने अपना काम 3-4 साल किया सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग का, तो स्मॉल शॉप, देन नोकिया के साथ फिर दोबारा LMKR और नाउ आई एम वर्किंग विद ज़मीन which is part of EMPG. Most of my career is products and so I love building teams and almost जब मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस था उस वक्त से मैं रिक्रूटमेंट और इन चीज़ों में इन्वॉल्व।
Thank you very much. Faiza? जी, thank you so much, Syed. मेरा नाम फ़ाइज़ा यूसुफ है and I've been in the industry for the past 10 years working in product development. Other than that, I run a community called Women in Tech PK and a coding bootcamp called Code Girls. Thank you very much. So, बड़ा humble introduction सारों ने अपना कराया. I would like to, before we start the discussion, थोड़ा सा I would like to pick from experience of Yasser. He's been working with edX and the top skill development companies in the world. आजकल, what's the trend you're looking at after post-COVID? What's changing and how is skill development scenario looking like? Yeah, that's a great question. I think it would hardly come as a surprise to anyone that post-COVID, the acceptance of online learning has literally skyrocketed. In fact, बहुत ही conservative numbers भी अगर मैं quote करूँ तो हमारे जो partners हैं जिनके साथ हम काम करते हैं edX जैसे, they're seeing at least a 7 to 8x boost in how many people are enrolling in their online courses, as well as how many people are actually completing those courses. तो इनके revenues भी बहुत तेजी से increase हो गए हैं और इस तरह की सारी कंपनीज में इस वक्त काफ़ी एक्साइटमेंट है और उनका ये भी ख्याल है कि जब ये कोविड सिचुएशन ख़त्म भी हो जाएगी, इवन देन दिस ट्रेंड इज गोइंग टू कंटिन्यू बिकॉज दिस करंट सिचुएशन हैज़ लेड टू द जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, जो कि पहले शायद नहीं थी. तो अब चूंकि लोगों को ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है तो उनको शायद अंदाज़ा हो रहा है कि ये बहुत सारी पहले भी हो सकती थी, हम कर नहीं रहे थे. एक डेफिनेट ट्रेंड मैं ये देख रहा हूँ कि बूस्ट इन ट्रैफिक एंड बूस्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग. And the other thing that I personally think कि बहुत exciting है और बल्कि हम अपनी organization के level पे कुछ कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि पाशा के level पे भी कुछ कर सकें उसके बारे में, वो ये है कि सारी expensive conferences जितनी दुनिया में हो रही थी और workshops हो रही थी, उनमें से बेशुमार ऐसी हैं जो free हो गई हैं और आप जो है उन पे register कर सकते हैं. काफ़ी सारों के लिए कोई पैसे नहीं देने, तो वो बड़ी expensive training थी जो शायद आपको एक कुछ $1000 की टिकट लेके जाना पड़े और फिर वहाँ पे कुछ हज़ार की टिकट देके कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी पड़े, वो शायद आप फ्री में कर सकते हैं. तो वो मेरे लिए पर्सनली बहुत एक्साइटिंग है और बहुत अपॉर्चुनिटी भी है. तो आई फील लाइक इफ देयर वाज लाइक अ डायरेक्टरी जहाँ पे हम वो सारी लिस्ट कर सकें पाशा के प्लेटफॉर्म से, तो सबको उसका बहुत फ़ायदा हो जाएगा और फिर सारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो हैं वो उनको डिस्कवर भी कर सकते हैं और रजिस्टर भी कर सकते हैं. Thank you. I think it's a great opportunity after this live session. We will collect all the resources जो जहाँ पे suggest होती हैं और online भी, and we'll start this directory for the benefit of the entire industry. It's definitely a one-off opportunity. So I'll start with Ali Syed. Ali, what do you think the current status of the market when it comes to quality of developers in Pakistan? When we look at, on one side, we look at the number of talent we have. We are top 5 when it comes to freelancing, and most of the people are developers. But when it comes to quality or our participation internationally, if you look at any kinds of online or communities like GitHub, you look at HackerRank, you don't see Pakistan in even top 30 or 40. Mostly Pakistani developers are not very active or not very visible internationally on such platforms. So what do you think is the state of quality of developers? And you hire normally आप cloud पे product पे भी काम करते हैं, architect चाहिए होते हैं और different किस्म की capabilities चाहिए होती हैं. Yasser works on Python a lot. So what do you think about that? अच्छा, मेरा जो इस पे एक्सपीरियंस रहा है और आई मतलब इसको क्वालिफाई पहले कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ ये. और मेरा एक्सपीरियंस प्राइमरीली लाहौर की रिक्रूटमेंट में रहा है. लाहौर में हम 2005 से मतलब मैं मुख्तलिफ कंपनियों के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ जहाँ पे हमने रिक्रूटमेंट की है. और 2011 में सैनवेल्स में शुरू की थी. तो इसके अंदर जो चीज़ है ना वो तो ये है कि सब ये रिलेटिव है.
तो जिस तरह यूनिवर्सिटी के अंदर कर्व पे ग्रेडिंग हो रही होती है, इस तरह क्या कॉम्पिटेंट है क्या नहीं है, ये एक रिलेटिव कर्व है। आप दुनिया में किस रैंक पे हैं वो समझना जरूरी है। और उसमें ये कि जो यूएस को अगर हम लेना एज आर कंपेटिटर, मतलब कि जो बेस लाइन जहाँ फॉर्म हो रही हो, तो उसके अंदर जो आपका जो इक्विवेलेंट बैठा है, जो वहाँ पे आपका डेवलपर जिसके साथ आपने compete करना है essentially, और आई से एज compete बिकॉज अगर एज अ प्रोडक्ट कंपनी तो हम तो डेफिनेटली compete कर रहे हैं। और उसके अंदर ये है कि वहाँ पे आई सी कि एक एक्सपीरियंस है, उसका एक एक्सपोजर है और वो मेच्योर है। एक्सपीरियंस इस लिहाज से कि एवरेज टिपिकली कह लें 7 से 12 साल का एक्सपीरियंस होगा। एक्सपोजर है कि उसने टारगेट मार्केट अमूमन जो हम पाकिस्तान में भी काम कर रहे होते हैं, जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसका जो डिलीवरेबल एंड होता है वो अमूमन अमेरिकन मार्केट ही होती है। और मेच्योरिटी ये है कि यहाँ पे अमेरिका में 16 या 18 की उम्र पे बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं और उसने खुद ऐसे फैसले उसने शुरू कर लिए होते हैं जिसका उसकी कॉन्सिक्वेंसेस उसी को पड़ रहे होते हैं। तो उसने लोन्स उसने ले लिए हैं, उसने कुछ शायद जिंदगी में कुछ गलतियां भी कुछ करनी है और उसको रियलाइजेशन हो गया कि ये तो मैंने ही इनको हैंडल करना है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक है यंग, एनर्जेटिक और स्मार्ट इंडिविजुअल इज हाउ आई वुड पुट इट, कि जिनको हम रिक्रूट कर रहे होते हैं एंड एवरेज जो अच्छी कंपनीज है पाकिस्तान के अंदर। तो उसके अंदर जो यंग है वो तो जो टिपिकल एज है वो इट्स प्रोबेबली एक क्वार्टर ऑफ जो यूएस की है, मतलब हमारे उसके अंदर 2 से 3 साल का एवरेज एक्सपीरियंस होगा, या इस मतलब ऑन द लोअर साइड देयर, बिकॉज हम जैसे जैसे एक्सपैंड करें और हमारी जो ज्यादा इनटेक है वो फ्रेश ग्रेजुएट्स है। वो एनर्जेटिक है बीइंग यंग, और वो स्मार्ट है कंपेयर्ड विद द एवरेज इन द यूएस। बट ये सारी स्मार्टनेस, सारी एनर्जी का कोई फायदा नहीं अगर वो पैशन ना हो। और वही और वही जो है एक चैलेंज है कि हमने कैसे एक एक टैलेंट को लेके उनको हम किस ट्रेनिंग पाथ के थ्रू लेके जाएं कि वो अपनी जो जो उनका जो एवरेज काउंटर पार्ट है अमेरिका में, उनसे उनका competitive एज बन जाए। द थिंग इज कि अगर यहाँ के टैलेंट के साथ हम कुछ ना करें, उनको नहीं वो ट्रेनिंग दे या अच्छी ट्रेनिंग ना दे, तो एक्सपीरियंस एंड मेच्योरिटी विल विन। और एंड ये खुद एक पैशन उस इंडिविजुअल का होना जरूरी है और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ट्रेनिंग पाथ का होना जरूरी है, जहाँ पे हम उस टैलेंट को इतनी जल्दी नर्चर करें कि उसका हमें फायदा हो और जो हम एंड डिलीवरेबल बना रहे हैं उसका कोई ना कोई competitive एज हो। और वो जो डिलीवरेबल जो बने, वो जो काउंटर पार्ट अमेरिका में जो हमारे कंपेटिटर्स बना रहे हैं उसमें कोई चीज बेहतर होनी चाहिए कि जो कस्टमर है वो कहे कि नहीं, मैंने यहाँ की जो चीज डिलीवर हुई है वो नहीं खरीदनी, इनकी चीज खरीदनी है। तो इसलिए कमिंग बैक अली, टू दैट क्वेश्चन, डू यू फाइंड जब आप हायरिंग कर रहे होते हैं क्लाउड के लिए और अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, डू यू फाइंड द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट यू आर लुकिंग फॉर इजीली? रिसोर्सेज तो पाकिस्तान के अंदर जो है हमें ऐसी रिसोर्सेज नहीं मिलती जिनके पास वो एक्सपीरियंस पहले से हो जिसकी हमें जरूरत है। तो ये तो हमने एक सेट किया हुआ कि इतनी हमने ट्रेनिंग करनी है, इतना इन्होंने एक्सपीरियंस गेन करना है, और वो जो कंपेटिटिव एज है उसका बस हमने ख्याल रखना बड़ा जरूरी है कि मतलब टू फायदा बी, क्या क्योंकि honestly इस प्रोग्राम का नाम है कैंडिड विद पाशा, तो I'd like to ask a candid question. I've heard myself कि for some of the capabilities you've basically been very, I mean, kind of given up कि यार पाकिस्तान में ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, मैं तो बाहर तो देखना पड़ेगा मुझे। गिवन इतनी ज़्यादा हमारे पास डेवलपर कम्युनिटी है लाखों के हिसाब से, just a handful of people hiring a handful of people, why? I mean, क्या मसला है? ये कि पाकिस्तान के अंदर आई थिंक एवरेज जो है वो जो जो काम हो रहा है वो काफी हद तक जो है वो प्रोटोटाइपिंग का आता है बाहर से।
तो पाकिस्तान के अंदर वो एक्सेलेंस जो है वो इतनी नहीं डेवलप हुई है। जो एवरेज वर्क कल्चर है वो इतना ड्रिवन नहीं है टूवर्ड्स एक्सेलेंस के जब रोटेशन हो विद इन कंपनीज तो वहाँ पे आप बाकियों के अच्छे कल्चर्स एक दूसरे को उस लेवल पे क्रॉस पॉलिनेट कर रहे हो। तो जितनी जो काउंटर पार्ट्स जो अमेरिका के अंदर है वहाँ पे पैशन भी काफी है, बड़ा इंटरेस्टिंग काम भी हो रहा होता है और वो यही है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रही होती है तो लोग अपनी अच्छी कल्चर्स की चीजें दूसरी कंपनियों में लेके आ रहे होते हैं एटसेट्रा एंड वो एक टिपिंग पॉइंट से आगे निकल चुके हैं। हमारा मेरे ख्याल में वो टिपिंग पॉइंट अभी नहीं आया और इसलिए एक मसला है हमें अभी इस वक्त पे। यासिर, पाइथन के ऊपर आप यू वर्क और इस तरह की आपका क्या ख्याल है इससे व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी ऑफ डेवलपर्स इन पाकिस्तान? क्या स्टेटस है पाकिस्तान का कंपेयर टू द अदर कंट्रीज? आई थिंक टू अ लार्ज पार्ट मैं एग्री करता हूँ अली के ऑब्जर्वेशन से। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान के टियर 1 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें मैं नस्क, GIK, लम्स, फास्ट, इस तरह के जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं आई थिंक उनकी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट परसेंटेज बड़ी अच्छी है। वो बड़े कम से कम इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में वो बड़े अच्छे होते हैं, वो सीख भी जाते हैं और मोर ऑफन देन नॉट उनको बाहर उन्हीं लेवल के इंजीनियर्स की तरह जॉब्स भी मिल जाती हैं जिनकी अली बात कर रहे हैं। जो मैंने एक चीज बहुत ज्यादा कमी देखी है पाकिस्तान में, और ऑब्वियसली ये परसेंटेज जो टियर 2 या टियर 3 स्कूल्स हैं उनकी जरा कम है, लेकिन वहां पे भी आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो शायद अपने शौक से टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं। लेकिन अच्छी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, अच्छी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सिर्फ इंजीनियरिंग का हाथ नहीं होता, बहुत सारी और चीजें होती हैं। मसलन एक चीज मैं लोगों को ये कहता हूँ कि यार आजकल एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए शायद आपको कोडिंग तो अच्छी आनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि 80-90% जो आप कोड लिख रहे होंगे ना वो शायद आप कहीं स्टैक ओवरफ्लो से या गूगल से सर्च करके ही लिख रहे होंगे। आप बहुत कम ओरिजिनल कोड लिख रहे होंगे, लेकिन जो चीज़ उससे भी शायद आपको ज़्यादा अच्छी आनी चाहिए वो ये कि आप कम्युनिकेट किस तरह करते हैं। आप कोड, आपसे जो मांगा जा रहा है आप उसके बारे में सवाल कैसे पूछते हैं, और फिर आप जो डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, जिस तरह उसको इम्प्लीमेंट करने चाह रहे हैं, उसको आगे से कैसे बताते हैं। तो अब ये वाली जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ये काफ़ी वीक हैं पाकिस्तान में। इवन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी शायद उतनी अच्छी तरह नहीं सिखाई जाती। इसी तरह एक जो मुझे पर्सनली बहुत तकलीफ होती है, जिसकी वजह से शायद हमारी प्रोडक्ट कंपनीज सक्सेसफुल नहीं होती और एंटरप्रेन्योरियल कंपनीज को बड़ा मसला होता है, वो ये है कि जो प्रोडक्ट डिज़ाइन और लेट्स से इस तरह के सारे डिसिप्लिन्स हैं जहाँ पे थोड़ी सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, जहाँ एम्पैथी चाहिए, जहाँ पे शायद लीडरशिप स्किल्स चाहिए, वो मुश्किल से लोग मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलते हैं। यूजेबिलिटी के प्रोग्राम्स नहीं है यूनिवर्सिटीज़ में, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के प्रोग्राम्स नहीं है, जनरली आर्ट के प्रोग्राम्स नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है तो आपको बहुत अच्छे लोग चाहिए जिनका आर्ट में बैकग्राउंड हो। तो मुझे लगता है कि शायद जो टेक्नोलॉजी वाली साइड है उस पर हम उस गैप को, जिसकी तरफ अली ने इशारा किया, शायद ब्रिज कर भी लें, लेकिन ये वाला जो गैप है ना ये अभी बहुत देर लगेगी। हमें अच्छा इंजीनियर ढूंढने में तो कुछ महीने लगते हैं, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइनर ढूंढने में कई दफ़ा साल भी लग जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से मुझे काफ़ी मसला लगता है। और बाकी ये कि मैं ये समझता हूँ हम हर साल एक बहुत सीरियस किस्म का टेस्ट करते हैं जिसमें हम तकरीबन पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ से बच्चों को मौका देते हैं कि वो उस टेस्ट में अपेयर हों और हमें ये दिखाएं कि वो जिस पैशन की अभी बात कर रहे हैं कि वो उनमें है या नहीं, उनको प्रोग्रामिंग से दिलचस्पी है, कोडिंग से दिलचस्पी है या नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि तकरीबन 70, और यानी कि इट इज़ सैड फॉर मी टू शेयर दिस, लेकिन 70-75% लोग जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, अगर सारी यूनिवर्सिटीज़ को एज अ होल देखें, वो कहीं भी ऐसी जगह पे नहीं है जहाँ पे वो एक सीरियस सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके सॉफ्टवेयर लिख सके। लेकिन अच्छी बात यह कि 20-25% जिनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो कर सकते हैं, वो भी काफ़ी बड़ा नंबर है, काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है। तो मेरे ख्याल से कोई अगर 25-30 हज़ार कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स हैं तो फिर भी 5-6-8 हज़ार लोग शायद पाकिस्तान में हर साल ऐसे निकल रहे हों जो कि जिनको अगर कम से कम वो ऑलरेडी उस जगह पे नहीं है तो उनको वहाँ लेके जाया जा सकता है जहाँ पे वो अच्छे इंजीनियर्स बन सकें, वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स बन सकें। मैं जिसमें बस Thank you. जस्ट क्विकली एक ऐड करना चाह रहा था, यही जो चीज यासिन ने कही है, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि पाकिस्तान के अंदर जब हमने भी जो टेस्ट लिए थे वो, और हम ये नहीं है कि कोई और चीज का, हमारे टेस्ट तो वही है जो एकेडमिक्स में उन्होंने पढ़ा होता है, उन्हीं पे कॉन्सेप्ट पे करने। इस बहुत मतलब द रिजल्ट्स जो है ना उसको देख के अफसोस ही होता है।
और वो ये है कि जो स्टूडेंट्स काफ़ी हैं उनको ये शायद समझ नहीं आ रही होती कि जो पढ़ रहे हैं अपने अंडरग्रेड में उसका कितना फ़ायदा और कितनी ज़रूरत है जॉब में। उनको ये लग रहा है कि जो ये डिग्री के लिए कर रहे हैं और बस डिग्री मिल जाएगी तो बस अब ये पढ़ाई की अब ज़रूरत नहीं है, अब कुछ और किसी का काम कोई और काम जो होगा उसके लिए कोई और स्किल्स चाहिए होंगी। वो कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री है उसी की जो स्किल्स जो डेवलप हुई हैं, उसी ही का ही काम है। तो वो कोर कॉन्सेप्ट्स वो जो फाउंडेशंस बनती हैं उनकी बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। थैंक यू। आई वुड रिक्वेस्ट द पैनलिस्ट के हम जब डिस्कस कर रहे होंगे आई मे आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट पैनलिस्ट। तो अगर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इफ यू फील के you don't agree to the other person, so you can definitely share your views. Otherwise, we'll ask other questions. So I'll come to Asim. Asim, what do you think? What's the reason? So we do see a lot of companies having open positions. Yasir ne just said that sometimes it may take a year. I know if you want to talk about user experience, there are certain disciplines just where you can actually forget about hiring good people, product designers in Pakistan. What's the reason for such a sad state we are in? Is it because हमारे पास पाकिस्तान में लर्निंग कल्चर नहीं है, लोग खुद लर्न करना नहीं चाहते, या हायर एजुकेशन में क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन में इशू है, या स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बहुत मिलियंस में चल रहे हैं, नैफटेक है, बाकी इदारे स्किल डेवलपमेंट चला रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम है, या फिर ये इंडस्ट्री का फेलियर है? व्हाट डू यू थिंक इज who's to blame for this situation? So आई थिंक इसमें एक कोई इसका चीज़ पे पॉइंट करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। लेट्स से प्रोडक्ट डिज़ाइनर की हम एग्जांपल लेते हैं, और ऑब्वियसली अगर एक प्रोडक्ट साइट बहुत एक जैसे ऑयल एंड गैस है तो उसमें बड़े स्पेसिफिक आपको प्रोडक्ट डिज़ाइनर चाहिए जो वो ऑल्सो अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ जो उसका यूज़र है, एज कम्पेयर टू जो कंज्यूमर टाइप प्रोडक्ट्स हैं वो एक और तरह के हैं। आई हैव सीन सम गुड डिज़ाइनर्स, दे आर रेयर, ऑब्वियसली वेरी रेयर। अब वो रेयर क्यों है? दो तीन चीज़ें। एक तो इंजीनियरिंग में फिर थोड़ा सा ना इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज की वजह से कुछ ना अलाइनमेंट होना शुरू हुई भी है, ठीक है। अभी भी यस, आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी अगर 25% लोग आर पासिंग आरबी सॉफ्ट का टेस्ट, सो दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। बट इंडस्ट्री एकेडमिया आई डोंट थिंक एग्जिस्ट दैट मच इन दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम जो कंप्यूटर आर्ट्स के प्रोग्राम है या इस तरह के, जहाँ से एक चांस है कि हमें अच्छे मिल सकते हैं। सो वो होता यही है कि अगर कोई किसी ने फ्रीलांसिंग में कुछ एक्सपीरियंस ले लिया प्रोडक्ट डिज़ाइन का या खुद से कुछ बुक्स पढ़ ली, सो कुछ लोग थोड़े एक लेवल तक रेडी होते हैं, देन यू नीड समवन लाइक यासिर और अवैस संजम और दोस टाइप ऑफ पीपल हु हैज़ दैट एप्रिसिएशन ऑफ यूजर एक्सपीरियंस कि वो इंटरव्यू करके जज कर सकेंगे ये बंदा है या नहीं। सो आई थिंक बहुत सारी कंपनियों में ऑलरेडी यूजर एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट डिज़ाइन के बंदे नहीं है, सो इंटरव्यू प्रोसेस भी वैसा नहीं होगा कि टू गेट द राइट पीपल फिर ट्रेन करके बाकी टीमों में भेजना। सो इसमें जो पॉइंट था, आई थिंक अली सैयद ने एक पॉइंट दिया था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरी करंट कंपनी में भी ऐसा ही है। हमारी एक सिस्टर कंपनी है जो रोमानिया में, और इसी तरह LMKR में भी हमारे देयर वर लॉट ऑफ पीपल जो बाहर बैठे हुए थे, और कुछ स्किल सेट ऐसा था जो हम उनसे ही सीखते थे। न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, इवन प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया। सो दीज वर द थिंग जो हम उस वक्त करते थे, और अभी भी इसी तरीके से कुछ स्किल सेट हमें रोमानिया में मिलता है। इवन टू दैट लेवल के पिछली कंपनी के अंदर हमने ऑटोमेशन थी वो आउटसोर्स की हुई थी एक फार ईस्ट की कंट्री को, बिकॉज पाकिस्तान में ऑटोमेशन के इंजीनियर्स भी नहीं मिल रहे थे, हालांकि इट शुड बी ईजियर देन एटलीस्ट प्रोडक्ट डिजाइनर। बट आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता जब आप इंटरेक्शन करेंगे, कॉस्ट प्रोलिफरेशन होगी, तो फिर यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग दोस टाइप ऑफ टीम्स हियर एंड गो ऑन। मेरे इस पे यही है कि शुरू में प्रॉबेबली वो लोग ज़्यादा इसमें आपको नज़र आ जाएंगे जो खुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं, हु कैन रीड फ्रॉम बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, लर्न। मतलब मैं पिछली कंपनी में मैंने जो मेरी जो प्रोडक्ट डिजाइनर की बंदी थी उसको मैंने कहा था यार ये 2-3 कोर्सेज हैं, इनको तुम से देखो, इनको पढ़ो। डोनाल्ड नॉर्मन का एक पूरा था, एक और भी था। सो जो लोग वो कर लेंगे कंप्लीट, आई थिंक दे विल नो अ लॉट मोर अबाउट दैट स्टफ देन एनीवन एल्स। बट आहिस्ता आहिस्ता देन दे कैन टीच अदर्स एंड देन इट विल बी समथिंग व्हिच इज जस्ट लाइक हम इंजीनियरिंग में भी थोड़ा बहुत अब देखते हैं। So yeah, so I think it will take some cycle. It will product में specifically आप ये ज़हन में रखेंगे, unlike project में
3 साल बाद जाके आपको पता चलता है कि जो आपने डिज़ाइनिंग का एक डिसीजन लिया था 3 साल पहले, वो उसका क्या इम्पैक्ट है। कुछ चीज़ों का जल्दी फीडबैक आ जाता है, स्पेशली B2C के अंदर तो बहुत जल्दी आपको फीडबैक मिल जाता है 3 महीने 6 महीने में भी, लेकिन जो B2B के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें फीडबैक साइकिल इज़ वेरी स्लो, और वो अक्रॉस द जब आप कॉन्टिनेंट्स डिफरेंट जगह अप्लाई कर रहे होते हो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू गेज कि इमीडिएटली ये क्या प्रोडक्ट डिज़ाइन के क्या इश्यूज थे वगैरह वगैरह. So it requires little bit more patience to develop that type of skill set. But B2C, I think a lot of tools are now available. Just get through, you can build product design team who can get a very quick feedback within 3-4 days. भी कि हमने किया था इसकी वजह से क्या हुआ. So yeah. Okay, coming to Faiza, I would so basically the एक Stack Overflow पे एक developer ecosystem में वो बहुत बड़ा सर्वे करते हैं जिसमें they asked their developers कि where did you get your skill mostly, मतलब आपने जो भी लैंग्वेज सीखी है वो आपने खुद सीखी है, मूव से की है, कहाँ से की है. 85% of the people they go in Stack Overflow, they are self-taught in many of the languages, yeah, in a lot of things that they learn. So अगर तो सेल्फ टॉट है, सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज इंटरनेट पे पड़ी हुई है, एज यासिर सेड कि ये तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम. आप आजकल टेक्निकली यू कैन गो ऑनलाइन एंड लर्न टू कोड. तो देन व्हाट्स द प्रॉब्लम पाकिस्तान में? I know you are, Faiza, working in a woman in tech and training kind of startups where you are teaching young women in Pakistan how to code and all. What do you see? Is there a problem in learning culture Pakistan में? लोग self-taught होने में उन्हें कोई problem है? What's your experience? उन्हें कोई push करने की ज़रूरत होती है? Boot camps are more important in Pakistan. वो आपका क्या experience है? Why self-taught लोग आपको कम initiative मिलता है compared to international countries? राइट, थैंक यू सैयद. मेरा दोनों तरफ का एक्सपीरियंस है विद अकेडमिया एज वेल एज रनिंग अ कोडिंग बूट कैम्प. अकेडमिया का प्रॉब्लम इज काइंड ऑफ सिंप्लीफाइड एंड नोन इन टर्म्स ऑफ वी नो दैट अ लॉट ऑफ करिकुलम इज़ रियली ओल्ड. मेरा एक्सपीरियंस फास्ट कराची के साथ रहा है. मैंने MS और BS प्रोग्राम्स को पढ़ाया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. सो आपको नज़र आता है कि करिकुलम एंड द वे दे टीच एंड द टीचर्स दैट दे आर टीचिंग do not have a lot of practical experience, और आप टेक्नोलॉजी बगैर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के नहीं पढ़ा सकते. तो वो एक प्रॉब्लम बहुत अपेरेंट है. जहाँ तक बात है कोडिंग बूट कैम्प की, सो हमने बूट कैम्प जब स्टार्ट किया तो ऑन साइट इसीलिए स्टार्ट किया बिकॉज हमारी बूट कैम्प की ऑडियंस वो थी जो कि टेक सेवी नहीं थी. ये वो ख़वातीन हैं जो कि सिर्फ बेसिक इंटरनेट यूज़ करना जानती हैं, सोशल मीडिया यूज़ करना जानती हैं, और इसके अलावा वो कुछ नहीं जानती. तो इनिशियली मैंने कुछ ऑनलाइन क्लासेस ली, कुछ लोगों को सिखाने की कोशिश की, बट आई रियलाइज दैट अंटिल अनलेस यू ब्रिंग देम टू अ फिजिकल स्पेस एंड मैच देम विद अ मेंटर, इट विल बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर देम टू लर्न एनीथिंग न्यू. और वो एक बैरियर है दैट दे डू नॉट consider online learning as learning, because internet has usually become a tool for entertainment for most of the people here. So rather than ये एक बहुत बड़ी रिसोर्स है फॉर लर्निंग, इट हैज़ बिकम अ रिसोर्स फॉर एंटरटेनमेंट. सो वी स्टार्टेड द ऑन साइट बूट कैम्प, और उसके अंदर वी रियलाइज दैट हमारा जो काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है 80% है, बट 20% लोग स्टिल ड्रॉप आउट ऑफ द प्रोग्राम बिकॉज दे आर अनेबल टू कोप अप. सो जितने भी आपको सेल्फ टॉट लोग नज़र आते हैं, ये वो लोग हैं जो नेचुरली क्यूरियस हैं एंड दे वांट टू लर्न. लेकिन हमारे यहाँ जब यूनिवर्सिटी में बच्चे जा रहे होते हैं, जो अकेडमिया में मैंने देखा है, वो यही होता है कि दे आर पिकिंग द करियर नॉट बिकॉज दे लाइक इट, बट बिकॉज समवन हैज़ एडवाइज देम टू टेक इट. आइदर इट्स देयर पेरेंट्स और समवन इन द फैमिली हैज़ टोल्ड देम टू टेक इट अप बिकॉज इसमें बहुत अच्छी नौकरियाँ हैं, एंड दे पिक इट अप. सो वो जो पैशन है लर्निंग का, या वो जो एबिलिटी है टू गेट इन टू इट एंड जस्ट डू इट, वो आपको नहीं मिलती. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन लर्निंग इज़ ऑफ कोर्स कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, एंड स्पेशली व्हेन इट्स फ्री, बिकॉज पीपल टेक फ्री थिंग्स फॉर ग्रांटेड. और ऑनलाइन लर्निंग के लिए जिस किस्म की मोटिवेशन या डिसिप्लिन चाहिए होता है वो मुश्किल है. मैंने जो है वो अपने साथ ही एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने 2 दिन में अभी प्रोडक्ट स्कूल की एक मास्टर क्लास ख़त्म की है,
and I made sure that I complete it before I come here. That was my goal, to make sure that I complete it, because I know that मैं अपने बहुत सारे कामों में I'm going to let go of it. So it's difficult because it's self-paced, so you need to create time, and learning हमारी nationally हमारी list में थोड़ा सा नीचे है, तो उस तक बारी नहीं आती टाइम एलोकेट होने की. कोडिंग बूट कैम्प में भी आप यही देखेंगे, हमारे पास बच्चियां बहुत सारी खवातीन हैं, हम उनकी प्लेसमेंट्स कराते हैं, तो हमारी तकरीबन 600 के करीब ग्रेजुएट्स हैं प्रोग्राम की, 100 के करीब हमने प्लेसमेंट्स कराई हैं लोकल और इंटरनेशनल इंडस्ट्री में. लेकिन उसके बावजूद और भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो टेस्ट के लिए अपेयर होती हैं, बट दे आर अनेबल टू क्लियर द टेस्ट even though they have passed through an 8-month long boot camp. सो वो वही बात है कि बूट कैंप उन्होंने क्लियर कर लिया है, थोड़ा बहुत काम कर लिया है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और सेल्फ लर्निंग रिक्वायर्ड होती है, दे आर अनेबल टू कोप अप विद दैट. सो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम दैट वी सी रिपीटेडली. और हम उसको थोड़ा सा कोप अप करने की कोशिश करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, थोड़ा सा पैशन गेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक कोई शॉर्ट सोल्यूशन इज़ नॉट समथिंग दैट आई कैन टेल यू. या I have a quick comment on what Faiza said, Sayed, if it's okay. अच्छा, फायजा ने बिल्कुल सही बात की है कि जब आप बिल्कुल फ्री कोर्सेज करते हैं ना, तो एक्चुअली इसके ऊपर बहुत सारा डेटा भी है, उसमें ड्रॉप आउट रेट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और उसमें शायद लर्निंग का एलिमेंट भी कम हो जाता है. इसीलिए जो सारे मूक वेबसाइट्स हैं उन पे जो प्रोग्राम्स हैं ना, वो ज़्यादा बेहतर हैं सिवाय सिर्फ एक कोर्स जाके लेने के. सो मसलन अगर आप यूडासिटी पे जाएँ तो आप कोर्स भी ले सकते हैं और आप नैनो डिग्री भी कर सकते हैं. अगर आप नैनो डिग्री में इनरोल कर लेंगे, आपको पैसे भी देने पड़ेंगे और आपकी लर्निंग भी बेहतर होगी, और उसमें जो कुछ और फायजा ने चीज़ें पॉइंट आउट की, आपको मेंटोर्स असाइन हो जाएंगे और फिर वो मेंटोर्स मेक श्योर करेंगे कि आप प्रोजेक्ट्स करें. इसी तरह एडेक्स के ऊपर माइक्रो मास्टर्स है, कोर्सेरा के ऊपर उनके अपने प्रोग्राम्स हैं. तो जब आप प्रोग्राम्स में इनरोल हो जाते हैं ना, तो आपकी लर्निंग की सक्सेस के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं. और बल्कि अगर आप शायद किसी चीज़ के लिए खुद पैसे दे रहे हैं ना, तो फिर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है कि यार अब चूंकि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें, तो अब मैं कुछ सीख ही लेता हूँ. तो आई थिंक ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा. अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हम कोशिश करते हैं कि बहुत लार्ज परसेंटेज ऑफ सब्सिडी दे दें जो ऑनलाइन प्रोग्राम की फ़ी है, लेकिन कुछ जो लर्नर है उसको खुद भी इन्वेस्ट करना पड़े, और फिर हमें देखा है कि उसका कंप्लीशन रेट काफ़ी हाई होता है और काफ़ी फ़ायदा होता है. एक ये पॉइंट था. दूसरा पॉइंट, जो अली जिस तरह के लोगों की बात करें और फायजा भी बात करें, एक पॉइंट मेरा ये भी था कि यार जो जिस तरह के इंजीनियर्स की बात हो रही है जो कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बना सकें, वो किसी एक सोर्स से नहीं लर्न करते. अमेरिका में जो 10x टाइप इंजीनियर, जो आपने सुना होगा एक टर्म इस्तेमाल होती है, वो ऑनलाइन कोर्सेज भी ले रहा है, वो वहाँ पे वर्कशॉप्स में भी जा रहा है, वहाँ लोकल मीटअप्स भी हो रहे हैं, वो ओपन सोर्स में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो बहुत मल्टी फैसेटेड लर्निंग की जरूरत होती है. तो अगर आप ये समझें कि मैं कोई एक तरीका अपनाऊंगा और मैं एक बहुत चीता प्रोग्रामर बन जाऊंगा, तो उसके चांसेस काफी कम है. तो पीपल नाउ नीड टू रियलाइज कि द वर्ल्ड हैज प्रोग्रेस्ड अ लॉट एंड देयर हैज टू बी लाइक मल्टीफैसेटेड लर्निंग. ऑब्वियसली उस केस में वी आर एट अ डिसएडवांटेज, क्योंकि वो इकोसिस्टम जो वहां पे है, जहां पे आप रोज सर्च करेंगे तो आपको अपनी लोकेलिटी में एक मीटअप मिल जाएगा. अगर आपको पाइथन का मीटअप चाहिए तो आप वहां जाके कुछ सीख लेंगे. वो अभी कम्युनिटी का एलिमेंट पाकिस्तान में इतना डेवलप नहीं हुआ. तो एक चीज जो आई थिंक पाशा के प्लेटफॉर्म से हमें करनी चाहिए, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, जिसके लिए जिस तरह हमने पाइथन की थी पिछले 3 साल से कर रहे हैं, बिकॉज हम पाइथन की कम्युनिटी डेवलप करना चाहते हैं. इसी तरह हम और कंपनीज ये काम करी. मुझे पता है तकरीबन सारी कंपनी का इस तरह का कोई चीज़ है कि जिसमें वो दे डू लाइक मंथली और हाफ ईयरली इवेंट जिसमें दे invite people from outside. We do it and it's like a learning and training event. So the crux of the point is that learning has to be multifaceted. You can't have unidimensional learning anymore. इस पे ये क्या पॉइंट सर? ये सही है. थोड़ा सा मेरा डिफरेंस है फायजा के एक पॉइंट से. So and I will let Ali say that he add more to it. So I don't think एक करिकुलम का इशू है. करिकुलम हमारा इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए है वो एग्जैक्टली वही करिकुलम है जो ACM का प्रिस्क्राइब करिकुलम है, और वो बाकी दुनिया में भी वही होता है. प्रॉब्लम आता है उस करिकुलम की डिलीवरी के ऊपर. यस, वहाँ पे मैं एग्री करता हूँ कि करिकुलम में अगर लिखा हुआ है कि आपने एल्गोरिथम एनालिसिस का एक कोर्स पढ़ाना है और टीचर ना एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स की बात करता है ना ग्रीडी एल्गोरिथम की बात करता है, तो दैट्स वेयर द इशू इज कि लोग 3-4-5 चैप्टर पढ़ा के ना डंडी मार के कोई असाइनमेंट्स नहीं कराएंगे और बस लोगों को पास कर देंगे. तो डिलीवरी इज एन इशू, बट ऑन पेपर हमारा करिकुलम इज लाइक इक्वलेंट टू वो है. और फिर
दोस्तों एक और जो दूसरा पॉइंट था कि वी नीड टू कीप इन माइंड कि मैं थोड़ा सा आज इसके ऊपर एक जगह पे लिखा भी था कि हर तरह का जो लर्निंग मतलब हर एक के लिए नहीं होती. देयर आर सम इंटरपर्सनल लोग होते हैं जो ग्रुप में स्टडी करते हैं, तो उनके लिए बूट कैंप्स और इस तरह की चीज़ें आर वेरी इफेक्टिव. ठीक है. एंड देन देयर आर पीपल जो थोड़ा इंट्रा टाइप होते हैं, जो उनके लिए सेल्फ पेस कोर्सेज आर मोर सूटेड, और थोड़ा बहुत वो डिस्कशन बोर्ड में कोई टॉपिक में फंस गए तो पूछ भी लेंगे, बट वो है. So we need to ensure as a community, as a like a ecosystem, कि we have all sort of tools available. I think कि जो self paced वाले हैं उनके लिए बहुत tools available हैं इस वक्त right now. I think they are like really advantage. But ये जो बाकी लोग हैं जो group studies पे believe करते हैं, auditory learners होते हैं, उनके लिए I don't think lot of things exist right now. Acha, I would like to increase the pace of it a little bit. Abhi I have a question for any of the panelists who want to answer this. I've heard from a few CEOs जिसमें वो you know, when Yasir ने कहा कि significant number of good quality graduates are coming into the market, but then वो experiences उन्हें क्या मिलते हैं और इस तरह के issues आते हैं. So I've heard quite a few people who think, for example, if someone goes into a startup, वहाँ पे startup founder is probably himself learning a lot, making mistakes. He may not have a very structured way of grooming the people working for him. SMEs, which make up 70% or more of our IT industry, they generally don't have a very structured training or learning programs. Community की बात की Yasir ने तो, I mean, a lot of these small companies are heads down working on the projects, and they may not even like their developers to be going out in events और आगे पीछे वो इन चीज़ों में time लगा रहे हो. They might just be wanting them कि वो productive hours produce कर रहे हो. तो ये जो I mean, do you agree कि a lot of our fresh graduate talent is wasted because of early years जो उन्हें मिलते हैं SMEs में या इस तरह की companies में जहाँ उनकी development नहीं हो पाती, और ये compare that to for example a consulting firm like IBM or Teradata जहाँ बहुत ही defined career growth बनी होती है और बड़े refine होके लोग निकल रहे होते हैं. So do you agree with this thing कि some of the IT industry के अपनी companies भी इसमें उन्हें fault पे हैं for lack of development of people? So इस पे I would like to say something, unless there's someone else who want to take a lead. अच्छा, so देखिए, I think मेरे ख्याल में ना this is a secondary parameter कि learning कहाँ पे हो रही है. ठीक है. मेरे ख्याल में primary parameter होना चाहिए डिलीवरी कहाँ पे हो रही है. Which company is producing world class product. ठीक है. अगर एक कंपनी है जिसके अंदर लर्निंग कल्चर है, लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स होती हैं, 40 मतलब आप सर्टिफाइड लोग नजर आएंगे, लाइक उनसे आप किसी फॉरम पे मिलेंगे तो दे नो अबाउट ऑल द सिस्टम डिजाइन लेवल हाई लेवल पे ना, लेकिन बट अगर उस कंपनी ने कोई एक भी ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं किया जो यहाँ पे है, एंड इट्स मोर लाइक अ सिस्टम इंटीग्रेशन वर्क है, उधर से एक चीज पकड़ी है, उधर से पकड़ी और जोड़ दिया, तो वो दैट इज ऑल्सो अलार्मिंग कि यू आर गेनिंग नॉलेज. इट्स जस्ट लाइक यू आर रीडिंग बुक्स बट यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन आइटम आउट ऑफ इट कि मैंने इसको अप्लाई कैसे करना है. सो मेरे ख्याल में दिस इज वेयर यूनिवर्सिटी लेवल से जब बंदा निकल रहा होता है ना, तो उसमें उनको ये बताने की जरूरत है कि स्ट्रेटजी इज डिलीवरी. सो मेरे साथ भी हो चुका है कंपनीज में, पीपल विल से कि यार हमने 2-3 सालों में जो कुछ लर्न करना था हमने कर लिया, एंड वी आर मूविंग टू दिस नेक्स्ट कंपनी बिकॉज वहाँ लर्निंग है, और उन 2 सालों में उनकी अभी डिलीवरी कोई भी नहीं हुई होती, जिसपे ना दे कैन 10 साल बाद या 20 साल बाद दे कैन प्राउडली से कि हमने ये चीजें डिलीवर की हैं. तो जब लोगों को ये ज़हन में आ जाएगा ना कि जॉब इज वन थिंग एंड कैरियर इज अ लॉन्गर टर्म थिंग एंड इट कैन स्पैन ओवर मल्टीपल कंपनीज, और उस वक्त ये पूछा जाएगा कि 10 साल बाद कि अच्छा आपका इसमें कंट्रीब्यूशन किया था, आपने 3 साल लेट्स से कंपनी में गुजारे डीपीएल में, तो व्हाट डिड यू एक्चुअली डिलीवर देयर. नो वन विल आस्क कि आपने वहां लर्न क्या किया था. ठीक है. दैट विल बी अ सेकेंडरी क्वेश्चन. फर्स्ट इज डिलीवरी. सो आई थिंक मैं इसको इस तरीके से अगर लोगों को पुश किया जाए तो दैट वुड बी बेटर रेदर देन कि फोकस जस्ट ऑन लर्निंग. And I have a quick comment. एक तो सही आपने शायद कहा था कि मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे लोग मार्केट में आ रहे हैं, एक्चुअली नहीं आ रहे बहुत अच्छे लोग मार्केट में. मेरा पॉइंट ये था कि लोग पाकिस्तान में जनरली क्योंकि एक यंगर पॉपुलेशन है और काफ़ी लोग मार्केट में हैं, तो छोटी परसेंटेज भी काफ़ी लोग बन जाते हैं, लेकिन दैट परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली वर्थ समथिंग इन टर्म्स ऑफ देयर टेक्निकल कैपेबिलिटी इज वेरी वेरी लो. इट्स अलार्मिंगली लो. 20% मैंने बहुत
यानी कि समझे कि फराख दिली से नंबर कोट किया था. It's more like 10% in my opinion. दूसरी बात, आसिम की बात से मैं एग्री करता हूँ, डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है. आपकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ. मेरे ख्याल में स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. लर्निंग कल्चर और नो लर्निंग कल्चर से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा. सो द फर्स्ट स्टेप आई थिंक इज़ कि यार अगर आपका लर्निंग कल्चर नहीं है, आप कोच नहीं करते अपने लोगों को, आप कोई भी तरीका नहीं दे रहे उनको सीखने का, तो स्ट्रक्चर्ड होने के बजाय कम से कम इन चीज़ों पे सोचना शुरू करें और कम से कम स्टार्ट करें. आई थिंक एक चीज़ तो खैर स्किल डेवलपमेंट है, एक सिंपल कोचिंग भी है. मतलब कितने टीम मैनेजर्स हैं पाकिस्तान में जो अपने लोगों के साथ रेगुलर चेक इन करके उनसे ये पूछते हो कि यार आपकी कैरियर एम्बिशंस क्या हैं, आप किस तरह ग्रो करना चाहते हैं, किस तरह डेवलप करना चाहते हैं, और उनके साथ फिर काम करें उस बात के ऊपर. तो ये बड़ी एक ऑलमोस्ट डिलिबरेटली लेट्स से अनस्ट्रक्चर्ड सी एक्सरसाइज है, लेकिन इसका फायदा बहुत होता है. तो आई वुड से स्टार्ट विद अनस्ट्रक्चर्ड एंड देन एज योर कंपनी ग्रोज तो फिर आप स्ट्रक्चर्ड की तरफ भी जा सकते हैं. इनफैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और बहुत ज़्यादा रेजिमेंटेड होना कई दफ़ा नुकसानदेह भी हो सकता है. दुनिया इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि समटाइम्स बीइंग अनस्ट्रक्चर्ड may actually be better for you. However, it's completely inexcusable if you don't have a learning program at all. I don't think कि कोई मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन छोटी बड़ी ऐसी होनी चाहिए जो कि बिल्कुल सोच ही ना रही हो कि यार हमारे लोग सीख क्या रहे हैं और हमें क्या एक्टिव रोल प्ले करना है उनके कुछ सीखने में. I would say there are a lot of companies that would not have any learning program so inexcusable है, मेरे ख्याल से inexcusable है. मेरा इस पे I एक want to पॉइंट add है. something here, I guess. जी please, जी फायजा, Aleen, go ahead. फायजा प्लीज. एक तो ये कि मेरा ज़्यादा एक्सपोजर लोकल कंपनीज के साथ इतना नहीं है बिकॉज क्लाइंटेल इज़ यूजुअली इन द वेस्ट. बट जिन कंपनीज के साथ मैंने काम किया है, हमारे यहाँ एक तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज नहीं है, हम सर्विस प्रोवाइडिंग वाला काम कर रहे होते हैं. तो हमारा रोल ये होता है कि बस काम आए और वी जस्ट पैच इट अप एंड जस्ट गेट रिड ऑफ इट. सो अगर आप इस कल्चर के साथ एक कंपनी रन कर रहे हैं कि जो भी काम है बस आप उससे जान छुड़ा लें, तो ऑफ कोर्स वो जो इम्प्लिसिट लर्निंग उसके साथ होती है वो कहीं भी डॉक्यूमेंट नहीं हो रही है. और दूसरी बात यह है कि रादर देन thinking about your organization as a knowledge organization, most of these companies are actually sweatshops. So they are just getting things and delivering things. तो जब इस churn के अंदर आप मुस्तकिल लगे हुए हैं और आप यही काम कर रहे हैं, so your employees wouldn't have any time, wouldn't have any space to learn anything. और I definitely agree with Yasir कि we need to check in as managers, we need to check in with our team के उन्होंने क्या सीखा है या उनकी aspirations क्या हैं. एंड जैसे हम यूजुअली ये कहते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा जॉब हॉपिंग कर रहा है सो इट्स रियली बैड. सिमिलरली अगर कोई 10 साल से एक कंपनी में एक ही पोजीशन में बैठा हुआ है, यू हैव टू फायर दैट गाय right away because this is not the person you need in your company. This person is not learning anything and this person is just sapping up resources and it's a bad role model to be in the company. तो वो जो चीज़ें हैं वो हमें उनको बहुत जो है वो I think curate करके अपनी टीम को रखना है. And then of course as people who are leading teams we need to lead by example. जैसे भी आसिम ने बात की कि लोग अलग अलग तरह से लर्न करते हैं, सो मैंने भी एग्जांपल दी कि मैं वो क्लास कंप्लीट कर रही थी. I am a reader. I do not learn very well with video. I like to read. But this was my first step towards getting into completing a masterclass to ensure that I get into it way outside of my comfort zone, but extremely important. And what I did in my capacity in the past 10 years is to keep on curating reading lists for my teams in different capacities to ensure that they're well supplied with the books. And you will see a lot of books here and here as well. So my home is like a library for them that they come pick up books and then go and then read and let me know about it. So as managers, you need to lead by examples in terms of learning yourself and also volunteering for learning a new skill when you're working on a product. It's extremely important that I say that, you know, I don't know anything about this, but I'm going to learn this and this is my responsibility. And what I did right now, I also started a course on search engine optimization on Udemy because I need to work on a product launch document, and we did not have an SEO. And I said, okay, I'll take up this responsibility and I'm going to finish the course and do that. So वो जो lead by example है, अगर आपके पास role models missing हैं, तो फिर of course आप पीछे आने वाले को शायद इतना blame नहीं कर सकते जब जो people who have influence and power are not doing their rightful duty. मैं इस पे बड़े इंटरेस्टिंग ऐसे पॉइंट्स हैं.
एक तो मैं इस पे ये जो डिलीवरी वर्सेस लर्निंग था जो आसिम ने कहा था, इस पे बड़ा ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अमेरिका में जब मैं सन में था, तो जब वहाँ यहाँ पे इंटरव्यू करता था, तो आई नेवर हर्ड कि किसी ने कभी कहा हो कि मैं यहाँ सीखने आ रहा हूँ। इट वाज मैं यहाँ आके ना ये मैंने करके दिखाना है। पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सिचुएशन फ्लिप होती है। जब पाकिस्तान में इंटरव्यू कर रहे होते हैं ना, तो ऑन टिपिकली काफी लोग जो है ना वो ये कहते हैं इंटरव्यू में ना कि आप क्या करना चाह रहे हैं, करियर क्या एस्पिरेशन है। मैं इस कंपनी में आना चाह रहा हूँ सीखने के लिए। अच्छा, दैट्स ऑल फाइन, ग्रेट, सीखने के लिए। मगर मसला यही होता है कि सीख के डिलीवर किए बगैर अगर आप कहीं चले जाएं, तो उस सीखने का कोई फायदा नहीं है। आप जो है एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट ही टाइप ही में फिर आप रह रहे हैं उस माइंडसेट में, और आप जो है इधर उधर जाते रहेंगे, मगर आपके पास कोई क्वांटिफाइबल चीज नहीं होगी, और आप अपने आप को, अपनी स्किल सेट्स को रीइंफोर्स नहीं कर सकेंगे। अच्छा, तो एक तो ये हो गया कि ये पार्ट था फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन जो खुद करियर में आ रहा है, उसको पैशनेट होना चाहिए, उसको डिलीवरी के बगैर नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज जो है वो कंपनी की तरफ से है, जो कल्चर का है, वो बड़ा जरूरी है। और उसमें मैं क्विक सा अपना इसमें एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी सारे जो डिसीजंस जो एज़ सीईओ लेते हैं जनरली, वो हम अपने एक्सपीरियंस में डेल्व करके लेते हैं कि क्या चीज़ें हमने देखी थी, वो सही थी, एंड ऑब्वियसली उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, वो कैसी चीज़ें चल रही हैं कि नहीं। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस में एक जो चीज़ अर्ली ऑन मेरे करियर में हुई थी, दैट वाज़ वेरी आई ओपनिंग वाज़ कि जब मैं यूएस आया, तो जो एक पहली कोई कंपनी में मैं था, वहाँ पे एक कोई प्रोजेक्ट था जहाँ पे आई वाज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ दीज डेवलपर्स हु वर एक्सट्रीमली मीडियोकर, एंड ये मैं थोड़ी अच्छा टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मीडियोकर। सो मुझे ये एक फॉल्स सेंस ऑफ एक फीलिंग सी हो गई उधर कि मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, मैं 1 घंटे में चीज कर लेता हूँ जो बाकी सब दिन में करते रहते हैं, मुझसे तो कोई बेहतर ही कोई नहीं। एंड आई मेरे ख्याल में मैंने कोई उधर 3 महीने गुजारे होंगे, एंड मैंने कुछ भी नहीं सीखा, मतलब कुछ भी नहीं सीखा। और राइट आफ्टर दैट आई गॉट इनटू सन, और उधर मुझे लगा जैसे आई एम एट द इन द बॉटम ऑफ द बैरल। मतलब हर बंदा इधर जो है कोई किताब लिख रहा है, कोई उधर जाके पब्लिश कर रहा है, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहा है, मुझे तो यहाँ कुछ आता ही कोई नहीं। तो वो जो कल्चरल एक प्रेशर था ना, इतना था कि मैं जो हूँ, मतलब दिन रात जो है ना, मुझे बस मेहनत करनी होती थी कि भाई मैं नहीं करूंगा तो मुझे तो ये लोग निकाल देंगे, क्योंकि मुझे तो, मैंने तो ये चीजें ही नहीं की जो ये सारे कर रहे हैं। और वो जो एक एक एक्सीलेंस का एक कल्चर जो बना होता ना, उससे आप ना बड़ी अपने आप के अंदर एक खुद एक ड्राइव आती थी कि मैं जब पाकिस्तान भी आता था मैं छुट्टी पे, और मुझे बस यही फिक्र होती थी, ये 1 महीने में ना मैं तो पीछे रह जाऊंगा, मैंने अब क्या मैं कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ। तो वो कल्चर जो है कंपनी को एक बनाना भी जरूरी है। और काफी जो अच्छी कंपनीज है पाकिस्तान में, वो ये कोशिश होती है कि अच्छे अच्छे लोगों को रिक्रूट करें ना, आप टॉप टैलेंट को रिक्रूट करें, मगर उन टॉप टैलेंट को रिक्रूट करके एक कल्चर बनाने की जरूरत है जहाँ पे एक एनवायरनमेंट हो जहाँ पे एक्सीलेंस इज रबिंग ऑफ वन अनदर, और एक लर्निंग का भी एक हाइब्रिड सा मॉडल हो कि आपने अपने पहले दूसरे तीसरे साल में अचीव क्या करना है, एंड दे नीड टू बी हेल्ड लायबल। बट ये ताली दो हाथ वाली है कि दूसरी तरफ भी एक पैशन होना जरूरी है, और कंपनी को भी वो एनवायरनमेंट देने की जरूरत है। सो Um, इस पे एक दो क्विक पॉइंट में अगर टाइम है। हम्म, सो एक तो ये कि थोड़ा सा मैं इस वाले पॉइंट से डिसएग्री करता हूँ जो 10 इयर्स के ऊपर फायर वाला पॉइंट है। अब मे बी एसएमईज के अंदर शायद थोड़ा डिफरेंस हो, लेकिन प्रोडक्ट कंपनी के लिए ना हम जिन प्रोडक्ट्स पे जनरली कोशिश करते हैं काम करने की, वो प्रोडक्ट उन प्रॉब्लम्स पे होते हैं जो विच यू कैन सी कि अगले 10 साल 15 साल 20 साल भी ये प्रॉब्लम रहेगी। You still want to, let's say, find oil, you still want to build property, you still want to educate people and health. So there are some problems जो temporary होते हैं, but there are some longer run problem. So उसमें it's very critical कि अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट पे काम करें तो आपकी जो इंजीनियरिंग की लैडर है जो भी है उसमें हो कि 10 साल पे आप कहाँ होंगे, 15 साल पे आप कहाँ होंगे, 20-25 साल पे आप कहाँ होंगे। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, लोग कहेंगे यार 10 साल बाद हमने बहुत इंजीनियरिंग कर लिया, अब हमें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दें या कुछ और बना दें। एंड समटाइम्स some people are more valuable to your company कि वो अगर 20 साल इंजीनियरिंग में रहे and you pay them more than your even managers because they are probably the ones who are earning bread for you अगर आप एक प्रोडक्ट कंपनी। सो एक तो ये चीज़ है। तो आई थिंक जो लर्निंग डिलीवरी वाला पॉइंट है, मुझे डर है कि वो ना हमारा मिस कोट हो जाएगा। अली और मैं एक ही पेज पे हैं अभी तक, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसको मैं तो उसमें जस्ट लेट मी वेरी क्लियर कि इट्स नॉट अगेंस्ट लर्निंग,
इट्स जस्ट कि हम जनरली पाकिस्तान के अंदर ना दो प्रॉब्लम्स हैं। एक के पाकिस्तान में हर चीज़ ना लोग एडहॉकली करते हैं, अगर आप कोड भी किसी का देखेंगे ना तो कहेंगे अच्छा ट्राई करते हैं शायद चल जाए ना, एक हमारी जनरल अप्रोच है रेदर देन एक प्लान के व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो ये लर्निंग के लिए भी ये वैलिड है। सो उसका तरीका ये होता है कि यू ऑलवेज गो फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। द प्रॉब्लम इज वी वांट टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, वी वांट टू हैव अ वर्ल्ड क्लास डिलीवरी, एंड देन यू सी कि व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग इज रिक्वायर्ड। and it doesn't need to be a very narrower vision, it can be a divergent कि अच्छा आज ये required है मगर 3 आगे ये भी required है। So learning is part of the solution, it's not part of the problem. This is what I was just trying to highlight. Okay. So now we would have a very important question, which is what a lot of people are interested in. I would ask every panelist to go through the practices that they go through in their company, या फिर अपने previous company में, if you have seen something that has worked really well for you. So how do you develop, train, and assess talent in your company to take them to the next level? So I will start with Faiza, or we will. जी Faiza. राइट, थैंक यू अहमद। मैंने जो मोस्टली प्रैक्टिसेस देखी हैं जिन कंपनी के साथ मैंने काम किया है, वन ऑफ द प्रैक्टिस वाज टू क्रिएट इंटरनल ट्रेनिंग मटेरियल फॉर माय टीम। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग अगेन एंड अगेन। प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट से मेरा यूजुअली ताल्लुक प्रोडक्ट मैनेजमेंट बिजनेस प्लस टेक्निकल साइड है, सो अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड लर्निंग दैट इज़ देयर। सो हम बहुत सारा इंटरनल कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। एक मैंने आपको बताया कि एक something that I've been doing in all the companies that I worked with is to basically create kind of like a book club to tell people to read good books that are coming up and just lend books to ensure कि वो किताब पाकिस्तान में नहीं मिलती, ये मसला भी हट जाए वहाँ से। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो मैंने कुछ अच्छे अपनी कंसल्टिंग रोल्स में देखी, वो ये थी कि दे यूज्ड टू इंश्योर that whatever discussions were happening, whatever learning was happening was documented somewhere. So even though आपके पास एक बहुत छोटी सी चीज़ आपने एक प्रोडक्ट के बारे में या चीज़ के बारे में लर्न की है, सो एक शेयर्ड विकी या शेयर्ड नॉलेज बेस एक टीम अपने पास रख रही है जो अपनी इम्प्लिसिट लर्निंग भी उसके अंदर लिख रही है। This is extremely important, not in terms of just growth of your employees, but it is basically related to what you're building for your clients, because बहुत सारी knowledge जब लोग छोड़ के जाते हैं तो उनके साथ वो नॉलेज भी चली जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आई थिंक बहुत ज़्यादा जैसे करने की ज़रूरत है, वो इंटरनल नॉलेज शेयरिंग को आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर लें, एंड देन इंटरनल मेंटोरशिप को थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर लें। मेरी अभी रिसेंट रोल में हमारी टीम में 3 लोग हैं जिनको एक्सप्लिसिटली मुझे असाइन किया गया है फॉर मेंटोरशिप, बिकॉज दे हैव लाइक लेस देन 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन टेक। So वो बड़ा ज़रूरी है, because now it becomes part of my job that I need to give them time and I need to train them and I need to answer their questions. अगर आप उसको informally करते हैं तो managers will say that I don't have time for this, I cannot do that, I'm busy in this and that. But now it has become part of my job responsibility, and the first thing that I did was to free 20% of their time every week to ensure that they are completing the things that I'm asking them to complete, which are not directly related to their work but related to their learning, because they are fairly new. So organizations चाहें तो उसमें definitely they should invest and create formal and informal ways of learning and growth. लेकिन individual levels पे भी जो भी आपके leaders हैं ऑर्गेनाइजेशन के या इन्फ्लुएंसर्स हैं या मैनेजर्स हैं, दे कैन ऑल्सो क्रिएट देयर ओन प्रोसेसेस टू इंश्योर कि उनकी टीम के अंदर जो है वो लर्निंग एंड ग्रोथ एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी वाली चीज़ें जो हैं वो रहें, एंड पीपल लाइक टू लर्न एंड ग्रो। जी Syed Ali, how do you go about training and learning in your organization? Okay. मैं जो ये डेवलपमेंट टीम के उस पे स्पेसिफिकली बात कर लूंगा कि हमारी और भी टीम्स होती हैं, बट जो डेव की जो टीम जब आती है, वैसे सारों की हमने ट्रेनिंग का जो है ना, हमने काफ़ी डिफरेंट तरीके ट्राई किए हुए हैं, और मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस में था उधर भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई थी। तो अब जितना मैं है वो हैज़ बिन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो रन किए हैं। तो एक तो ये है कि पहले हम सिंगल इंडिविजुअल्स को लेते थे और उनको एक ट्रेनिंग सेशन में शुरू में डालते थे, जिसके अंदर वो अबाउट 6 weeks to 2 months जिसके अंदर उन्होंने चीज़ें करनी होती थी। एंड वी रियलाइज के बेहतर ये होता है कि अगर हम ग्रुपिंग कर लें,
तो बैचेस में लोगों को लें और फिर उनको इस ट्रेनिंग पैथ के थ्रू दें, बिकॉज वो बैच जो है वो आपस में भी थोड़ा कोलैबोरेट कर लेता है, एंड वो इतना बोरिंग नहीं होता, क्योंकि स्पेशली अगर फ्रेश ग्रेड्स के लिए ये हो रही हो तो उनको इस चीज़ की बड़ी जल्दी होती है कि यार हम तो पढ़ पढ़ के थक गए, हमें कोई काम भी दें, अभी आपने फिर पढ़ाई में हमें लगा दिया। तो वो बट वो पढ़ाई बड़ी ज़रूरी होती है जो तो ये आप ट्रेनिंग ऑन की होती बोर्डिंग की बात कर रहे हैं, नए ग्रेजुएट जब आते हैं तो यू यूज टू डू लाइक है। 1.5 महीने की 2 महीने की ट्रेनिंग। राइट, तो उनको एक तो हम ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ट्रेनिंग के अंदर यही है कि हम उनको फंडामेंटल्स, जो हम रूबी ऑन रेल्स में हमारा स्टैक है, तो हम रूबी पहले करते हैं, फिर रूबी ऑन रेल्स करते हैं, एंड ऑन अ डेली बेसिस उनको जो है उनका एक मेंटर असाइंड होता है, तो और मेंटर को ग्रुप्स दे दिए होते हैं। तो मेंटर की सक्सेस जो है वो इज डिपेंडेंट ऑन उनका ग्रुप कितना अच्छा करेगा। और ये बड़ा हमने ऑर्गेनाइजेशनली ये थोड़ा सेट सा किया हुआ है एंड कि दिस जो मेंटर हायर लेवल, इज अ ट्रेनर या आपका ही कोई इंजीनियरिंग रिसोर्स है? नहीं, ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ही 1 साल का एक्सपीरियंस होगा या 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, पिछले या पिछले से पिछले बैच में आया होगा। सो उसका भी वेस्टेड होता है कि भाई वो उसका ग्रुप सक्सेसफुल होगा तो ही बी परसीव्ड एज बीइंग सक्सेसफुल, एंड देन फिर जो उनके जो लीड्स होते हैं उनको भी हम उनके जो नीचे जो ग्रुप्स हैं वो अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं तो देन दे आर आल्सो परसीव्ड एज बीइंग सक्सेसफुल। सो एक तो ये है कि ये बुक्स होती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बुक्स के अंदर प्रैग्मेटिक की अच्छी बुक है रूबी की, वो कर रहे हैं, फिर रूबी ऑन रेल्स की है, और ऑन अ डेली बेसिस जो मेंटर हैं वो उनसे क्वेश्चन Q&A होता है उस ग्रुप के साथ, और फिर जो लीड्स हैं वो आके भी एक ऑडिट पॉइंट्स रखे हुए हैं जहाँ पे वंस अ वीक वो आके भी फिर सवाल करते हैं जस्ट टू गेट ये असेसमेंट के क्रॉस टीम्स भी सब एक ही साथ चल रहे हैं, लॉक एंड स्टेप, या कोई एक टीम आगे निकल गई या एक टीम पीछे रह गई है, क्या वो है। और फिर ये है कि जब ये इसे ग्रेजुएट से कर जाते हैं और फाइनल में एक प्रोजेक्ट इन्हें करना होता है, और जब तक ये प्रोजेक्ट नहीं होता हम उनको ग्रेजुएट नहीं करते इनटू द एक्चुअल इंजीनियरिंग, और उसके अंदर ये काफी पुशबैक भी आया हुआ है टाइम्स के, भाई ये तो कोड प्रोडक्शन वाला है भी नहीं, ये भाई हमें बस आगे कर दें, एंड द थिंग इज जब भी हमने इन द पास्ट कोई ऐसे शॉर्टकट्स लिए बाद में हमें रिग्रेट जरूर हुआ है। तो बड़ा जरूरी है कि ना शुरू के अंदर हम ना एक सेट कर दें कि यार ये बेयर मिनिमम है, दिस इज द कोडिंग प्रैक्टिसेस, दिस इज हाउ यू डू स्टफ हियर, वो चीजें बिल्कुल आयरन आउट शुरू में कर दें तो देन ऑन हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। और फिर यही होता है कि हर लेवल पे एक्टिव कोड रिव्यूज, मेंटरशिप इज क्रिटिकल। तो जो हमने वो वर्क का जो प्रोसेस रखा है वो यही है कि कोई भी कोड होता है उसका एक पीयर रिव्यू होना होता है, पीयर रिव्यू के बाद जो है वो टीम रिव्यू होता है बिफोर इट गोज इनटू प्रोडक्शन, एंड उसके अंदर जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो बड़े क्रिटिकल होते हैं कि पीयर रिव्यू में क्या क्या चीजें मिल रही हैं। अगर बेसिक इश्यूज पीयर रिव्यू के अंदर जो साइकिल्स चल रही हैं उसमें चल रहे हैं तो वी नो समथिंग्स ऑफ, और अगर वो चीज टीम रिव्यू में आ रही है तो फिर वहां पे इश्यूज हैं। और वो उसको हमने स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चल रहे होते हैं। और फिर हमने कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज का किया हुआ है कि एज पार्ट ऑफ द बोनस प्रोग्राम्स को जो एक्सपीरियंस टीम है वो भी हर 6 महीने के अंदर उन्हें एक ना एक ऑनलाइन कोर्स लेना होता है। कोर्स लेने के बाद उन्हें एक सेशन करना होता है विद द लार्जर टीम। ये दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। और ये कोर्स टिपिकली ये कोर्सेरा का 11 to 12 वीक्स वाला होता है। वो यूडेमी के अंदर वो हल्के फुल्के होते हैं, उनको हम नहीं इसमें काउंट करते। इसके अंदर भी ट्राई के थोड़ी डेप्थ उनको अच्छी आए, बट वो जब वो एक डेमो सा देते हैं, एक सेशन करते हैं, तो फिर बड़ा एक ऑब्वियस हो जाता है कि ये उन्होंने खुद सीखा कि नहीं सीखा। और अगर नहीं भी किया होता तो जस्ट बिकॉज ऑफ डूइंग अ डेमो काफी कुछ खुद उस वक्त सीख लेते हैं, और बाकियों को भी एक आइडिया हो जाता है कि इज दिस कोर्स वर्थ डूइंग, और इफ इट्स वर्थ डूइंग तो क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस कोर्स के अंदर। तो इस तरह का एक कंटिन्यूस एक लूप सा हम चला रहे होते हैं कि लर्निंग का। थैंक यू। आसिम? सो आई थिंक सो इसमें 2-3 चीजें तो ऑब्वियस हैं, आई थिंक सारी कंपनियां करती होंगी। हमारे केस में ये था कि देयर आर सम पीपल जिनको मैं कहूँगा कि वो एक तरह से हमारे पूरे फ्लोर के ऊपर दे आर लाइक बार रेजर्स, ठीक है। सो हमने ऐसा ऐसा वी मेड श्योर के इंटरव्यू से वही लोग करें,
ठीक है। सो इंटरव्यूइंग पैनल, अगर एक टीम है लेट्स से प्रोडक्ट ए की, उनको बंदे चाहिए भी हैं, तो वो दे वर नॉट इंटरव्यूइंग दैट। वो जो प्लेटफॉर्म की टीम है जिसके अंदर हाई क्वालिटी एक लीडरशिप भी है वगैरह, तो दे वर डूइंग इट। और उसमें फिर हम करते भी ये थे कि whenever we were hiring people, स्पेशली मैं अगर फ्रेश ग्रेजुएट्स की बात करूँ, तो वो 6 to 8 वीक्स पहले शुरू में ज़्यादा था, 3 मंथ्स था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको थोड़ा सा नीचे ले आए थे। वो उस टीम के साथ ही गुजारते हैं, एंड इट्स क्लियर कि वो उस टीम के साथ लॉन्ग टर्म स्टे नहीं करेंगे, दे विल मूव टू अदर प्रोडक्ट टीम्स। बट उसमें ये होता है कि वो जो मेंटरशिप की रिलेशनशिप बन जाती है उस प्रोडक्ट टीम के साथ, वो आगे भी चलती रहती है, एंड दे कैन चेक ऑन कि कैसा आप काम कर रहे हो, आप टीडीडी फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड ऑन। सो हमारा बड़ा क्लियर था, क्योंकि हमारा बहुत सारा लेगेसी का वर्क था पिछली कंपनी में, तो उसमें C++ वाज काइंड ऑफ लाइक एब्सोल्युटली मस्ट। हालांकि बहुत सारा काम हम C# में कर रहे होते थे, बट कहीं ना कहीं आपने C++ के साथ भी छेड़छाड़ करनी होती थी। तो हमारा वो पूरा करिकुलम उस हिसाब से बना हुआ था कि दीज आर द थिंग दैट यू हैव टू गो। उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती थी, मतलब जैसा TDD की जो ट्रेनिंग्स होती थी वो C# में हम कराते थे, लेकिन लेगेसी के साथ कैसे काम करना है उसके ऊपर भी C++ की कुछ बुक्स थी, मास्टरिंग आई थिंक C++ आइवर हॉर्टन की, दैट वाज द बुक दैट वी वर फॉलोइंग। तो वो पूरा एक डिजाइन हुआ था करिकुलम। देन वी हैड अकाउंट्स फॉर प्लूरल साइट, जिसमें हम लोगों को कहते थे यार जब आपने किसी ऐसे टूल पे काम करना है जिस पे आपने पहले नहीं किया हुआ, तो यू आर एनकरेज टू लुक इनटू दैट एंड लर्न फ्रॉम देयर। ये तो हो गया वो चीजें जो शुरू का पार्ट होता है। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो था और कुछ था जो आई विश होने चाहिए था, जो था वो ये था कोड रिव्यूज वाला, कि सीनियर पीपल वर रिव्यूइंग योर कोड एंड आइडेंटिफाइंग यार ये इश्यूज हैं, इनको आप ऐसे देखो वगैरह वगैरह वगैरह। बट आई थिंक वर्ड वाज मिसिंग, और जो मैं कोशिश कर रहा था OKRs को भी मैं सीधी ज़्यादा मैंने स्टडी किया था कि आई कैन यूज इट, और होपफुली इस कंपनी में करूंगा भी, कि समटाइम्स यू नो द लिमिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट। क्या ये प्रोडक्ट 10 यूजर्स पे चलता है, 1000 पे नहीं चलेगा, या ये 1 GB के डाटा के साथ चलेगा, 10 GB पे या 100 GB पे नहीं चलेगा। So that's an opportunity for your engineering team to like really scale up their level up their game, and if they were not using the right data structure to solve certain part of the software before, how they can, because अगर आपकी company grow कर रही है तो your product will reach that level and probably sooner than you expect. Like even in my current company we were just in 8 countries आज से 4 महीने पहले, और अब हम 16 countries में हैं, और ये स्केल का इतना बड़ा हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि अगर हम इस तरह की चीज़ों को आइडेंटिफाई डाटा के थ्रू नहीं करेंगे, so it's very hard to do these type of thing manually ad hoc. You have to have like profiling tools almost running as part of your build process, which is like highlighting यहाँ पे ना आपकी capacity DB पे load है, middleware पे load है, whatever. So I think that is something that right now I saw missing in some of the companies, and I think that's where the next thing is कि शुरू की learning होगी, reviews भी हो रहे हैं, but then start getting के what is the, जिसका अगर आप स्टडी करें ना गूगल वगैरह के मॉडल्स, तो वो लेवल 5 से लेवल 6 आने पे वो लेवल 6 की असाइनमेंट्स होती हैं। सो आप यू हैव टू थिंक इन योर केस व्हाट आर दोस लेवल 6 असाइनमेंट, जिसके बेस पे योर SE या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैन ग्रो इनटू अ स्टाफ इंजीनियरिंग रोल आफ्टर डूइंग दैट। उसमें वो लर्निंग भी आएगी, उसमें उसकी ग्रोथ भी आएगी। यू आर म्यूट अली। यासिर, आपके पास एक काफ़ी साइजेबल टीम है। आई थिंक यू हैव मोर देन और क्लोज टू 500 पीपल। इतनी बड़ी टीम की लर्निंग इंश्योर करना, स्पेशली जब आप एडएक्स के लिए भी काम कर रहे हो, तो आपका क्या प्रोग्राम है लर्निंग का, एंड हाउ डू यू इंश्योर कि आपके सारे हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर्स आर एट टॉप ऑफ देयर गेम? जी थैंक यू। वैसे क्लोज टू 600 होने वाले हैं माशाल्लाह, थोड़ा सा आपने लो बॉल कर दिया, बट माशाल्लाह। आई थिंक जो टेक्निकल साइड पे लर्निंग है उस पे जो जिस तरह अली ने और बाकी लोगों ने बात की, आसिम ने भी और फायजा ने भी, काफ़ी ओवरलैप है उसमें। हम भी ये कोशिश करते हैं कि जब लोग आएँ तो वो शैडो करें टीम्स में, और काफ़ी लंबे अरसे तक, कम से कम 3 महीने तक, बट टिपिकली 3 से 6 महीने भी वो शैडो कर रहे होते हैं, एंड दे आर नॉट चेकिंग कोड इनटू प्रोडक्शन रिपोज। तो ये हो रहा होता है। एक चीज जो पीछे भी बात हुई थी, शायद काफी लोगों ने की, वो शायद एक डिस्टिंक्शन भी क्रिएट होगी कि यार सर्विस कंपनी में ऐसे होता है, प्रोडक्ट कंपनी में ऐसे होता है। ये मैं जनरली बताना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस थ्रेशोल्ड्स फॉर व्हाट इज एक्सेप्टेबल कोड वो काफी ऊपर जाते जा रहे हैं, और सर्विस जिस तरह हमारे तो सारी सर्विस कंपनीज जिनके साथ हम काम करते हैं उनके बहुत हाई थ्रेशोल्ड्स हैं। तो मतलब एक एग्जांपल जो और लोगों ने भी दिया है कि यार आपकी PR के ऊपर 2 थम्स अप आपको मिलने चाहिए, या आपके इंटरनली या कस्टमर से, फिर वो एक्सेप्ट होगी। ये बड़ा एक स्टैंडर्ड सी चीज़ बन गई है। बल्कि मेरा कंपनीज को मशवरा ये है कि अगर आप आपका सर्विस क्लाइंट है और वो इंसिस्ट नहीं कर रहा ना, तो यू शुड बी वेरी वरीड।
और आपके पास 2 क्लाइंट्स हैं, एक कहता है कि यार मैंने ये प्रोसेसेस फॉलो करनी है अच्छे कोड के और अच्छी गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा पे नहीं करूँगा, और दूसरा कहता है कि यार बस जैसा भी कोड है आप बना के मुझे दे दें, लेकिन आई पे यू नो significantly higher. So I would say go with the former and not with the latter, because वो it'll pay off in the long run because it'll teach you something. तो हमने तो जितनी भी अच्छी practices सीखी हैं अपने customers से सीखी हैं, because most of them are kind of world class companies जो कि world leading products चला रही हैं, तो उनके लिए acceptance thresholds बहुत high हैं. तो सबसे ज़्यादा I think important यही होता है कि आप किसी अच्छी टीम के अंदर इंजेक्ट हुए और फिर वहाँ पे आप आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोगों को देख के, और वो आपको एक लर्निंग पाथ सबके लिए एग्जिस्ट करते हैं, वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उन्हें मौका देते हैं कि प्रोडक्शन कोड चेक इन कर सकें, और अगर उनको अपने चेक इन पे थम्स अप्स मिलना शुरू हो जाए और उनका कोड मर्ज होना शुरू हो जाए तो एक अच्छी चीज़ है. तो टेक्निकल साइड पे आई थिंक कम से कम फ्रेश के लिए ये है. जो एक चीज़ हमने लेसन नॉन टेक्निकल साइड पे सीखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, एंड आई रिपीट दैट अगेन, कि मसला ये अगर आप कम्युनिकेट अच्छे तरीके से नहीं करते ना, अगर आपने अपनी पीआर के साथ अच्छे कमेंट्स नहीं डाले या अपने कमिट्स के साथ आपने एक्सप्लेन नहीं किया अपने कमिट को, या आपको जो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं उससे आपने अच्छे सवाल नहीं पूछे, तो आप कोड जितना मर्जी अच्छा लिखते हो यू वुड मोस्ट प्रोबब्ली एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक दैट यू हैव टू रीडू. उसके लिए हम काफ़ी फोकस करते हैं सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी, और उसके बारे में जो हमने एक प्राइमरी लेसन ओवर मेनी ईयर्स सीखा है कि सॉफ्ट स्किल लर्निंग एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग इज नॉट समथिंग जो कि आप वन ऑफ ट्रेनिंग सेशन से सीख सकते हैं. Those things have to be like a part of your culture, and you know they have to be ongoing. So مثلا communication के लिए we have like a full-time trainer who's always running communication sessions for different people at different levels. So L1 communication training है, फिर L2 है, फिर L3 है. इसी तरह लीडरशिप के लिए, इसी तरह कोचिंग के लिए, इसी तरह एम्पथी के लिए. तो ये वाली सारी चीज़ें आई थिंक साथ साथ ऑनगोइंग बेसिस पे, परमानेंट बेसिस पे चलती रहती हैं. जो सीनियर लोग हैं उनको हम बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज करते हैं, जिस तरह अली ने भी कहा, आसिम ने भी कहा, कि not only we give them incentives, not only in terms of के उनके bonus और rewards क्या हैं, but also we would subsidize a program like a Udacity Nano degree या MicroMasters अगर वो करना चाहते हैं, तो हम बहुत significant subsidy देते हैं कि अगर वो आप कर लें एक given time period के अंदर. तो again I think the idea is कि बहुत मल्टी डिमेंशनल और मल्टी फैसेटेड तरीके से लर्निंग होती है. एक और चीज़ जो मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, हम काफ़ी करते हैं, इज़ कि people who are good at something, जिस तरह अगर हमारे पास कोई बहुत एक्सपर्ट लेट्स से रिएक्ट नेटिव डेवलपर है, तो we encourage them a lot के गाहे बगाहे कम से कम क्वार्टर में एक दफ़ा, if not once a month, they should hold like a workshop and then let people see why they know what they know. वो भी एक path है. तो काफ़ी डिफरेंट तरीके हैं. अली आप म्यूटेड हैं. म्यूट हैं आप सैयद अहमद. बीच में हम कुछ क्वेश्चंस भी ले लेते हैं जो लोगों ने सेंड किए हैं. मोहम्मद नईम आस्क्ड कि द वन थिंग सर जासिर इज हाईलाइटिंग हियर, मेरे ख्याल में जो आपने बात की थी कि कम्युनिटीज में जाना चाहिए, डिफरेंट तरीके हैं लर्निंग करने के. He says, do you think our office timings and workload enable us to do that? अच्छा, इसके लिए आर्बिसॉफ्ट में तो हमने काफ़ी स्पेसिफिक रूल्स बनाए हुए हैं. हम नहीं चाहते कि हर बंदे का जो बिलेबल टाइम है लेट्स से वो 100% बुक्ड हो. हम चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपनी टीम्स में एक्स्ट्रा कैपेसिटी ऐड करें ताकि हर एक के पास कुछ ना कुछ लर्निंग बफर हो. बिकॉज वो अब ऑलमोस्ट क्लीशे बन गया है. आपने भी सुना होगा कि यार what if you train your people and they leave, but what if you don't train them and they stay? So we are very afraid of not training our people and then having them stay, right? So we create that buffer for our people. I think that's really important. And आमतौर पे in between projects या in between releases भी time होता है कि आप उनको कह सकते हैं कि यार चलें अब आप, while you're waiting for the next project, let's do a workshop together, right? Or you can coach somebody. So I think वो buffer I would think that all organizations need to create at least 10 to 15%. आप हर बंदे की capacity में से free up कर दें उनका learning time. Otherwise, you stand the risk of them getting burnt out and also not updating their skills, which could be an existential risk going forward for you. हमने ना इसके अंदर दो चीजें की थी. ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है. इट कम्स काफी फ्रीक्वेंट आया हुआ है, और उसके अंदर एक तो ये है कि ऑब्वियसली एक तो मॉनेटरी इंसेंटिव है कि उनको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा एक्सेट्रा ऑनलाइन अगर वो करते हैं और वो कंपनी स्पॉन्सर्ड है. दूसरा ये है कि
उसको कुछ टाइम जो है फिर घर जाके लोगों को नहीं मिल रहा था। सम ऑफ इट वाज वेरी लेजिटिमेट के भाई कम्यूट उनकी लंबी है, घर के अंदर कुछ काम उन्होंने कराने होते हैं, एंड कुछ लेजिटिमेट एक्सक्यूज रीजंस हैं जिनकी वजह से फिर था कि भाई ऑफिस में इनको टाइम इतना % देना है कि ये कोर्स कर सकें। पर ये जो कोर्सेज हैं ये बड़ा ज़रूरी है कि फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव कि खुद एक ड्राइव होनी ज़रूरी है। आपको अपना पर्सनल टाइम भी निकालना है। ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि सारा का सारा ये कंपनी ही की टाइम में करना है। बिकॉज़ आपने अपनी तरफ से पैशन लेके आना है, और अगर वो पैशन नहीं होगा तो नन ऑफ दिस रियली मैटर्स। मतलब आप जो है कोर्सेज के थ्रू जा सकते हैं and all these things, but agar passion missing and you're not really going to gain much. And the purpose of a company isn't really to be a university. तो जो ट्रेनिंग है वो तो अब हमने थोड़ा 50-50 मॉडल किया हुआ है, बट उसके अंदर भी हम ऐसे लोगों के अक्रॉस, ऐसी इंडिविजुअल्स के अक्रॉस भी आए हुए हैं जिनका पॉइंट ये रहा है कि भाई मैंने तो बाहर जाके निहारी खानी है, बट की कढ़ाई खानी है, या कोई खेलना है जाके। तो वो भी चीजें जरूरी हैं, बट द पॉइंट बीइंग कि नहीं, माय पर्सनल टाइम जो है वो मेरा है, और ये जो पढ़ाई का है ये जो है ये सिर्फ कंपनी के आवर्स में होना चाहिए। वो जो एक्सट्रीम हो जाता है ना, उसके अंदर भी एक लर्निंग का जो एनवायरनमेंट है वो इतना प्रोग्रेस नहीं करता। सो अब हम हाइब्रिड मॉडल पे हैं कि कुछ टाइम जो है आप ऑफिस में लगाएं और बाकी टाइम जो है आप घर पे लगाएं, एंड इट काइंड ऑफ शोज के आप खुद कितना स्टेक देते हैं अपनी एजुकेशन को और अपनी लर्निंग को। इस पे मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। सो अभी वैसे वेरी रिसेंटली वन ऑफ माय एक्स कोलीग नीदरलैंड में होती है, उन्होंने शिकवा एक किया था कि मुझे आपसे सिर्फ एक शिकायत है कि ना आप ऑफिस कल्चर में ना वर्कहोलिज्म को बहुत प्रमोट करती हैं, ठीक है। सो मैं कहा बट आई विल स्टिल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट बिकॉज आई थिंक अनलाइक वेस्टर्न कंट्रीज ना, वी पाकिस्तानी हैव अ डिसएडवांटेज। होपफुली ये खान अकेडमी उसकी वजह से वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाएगा, बट हमारी जो एजुकेशन है प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी पे यूनिवर्सिटी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो अगर एक लेट से ईस्ट यूरोप का एक बंदा एक चीज़ 3 घंटे में कर लेता है तो हमें 5, 6, 7, 8 घंटे करने पड़ते हैं। और शुरू के कैरियर में अगर आप हैबिट नहीं डालेंगे कि व्हाट आर द राइट थिंग टू लर्न एंड बिकम बेटर, तो जो कंपाउंड इफेक्ट आता है ओवर द ऑल कैरियर के अंदर कि आप एक लेवल पे पैरिटी पे आ जाओगे, वो नहीं आता। सो जब आप कंपनी में एक बंदा लाते हो शुरू में, आप 3 महीने 6 महीने जो भी आप उसको टाइम दें, वो ट्रेनिंग का टाइम है, उसमें बिलिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई नो कि सर्विसेज कंपनी अगेन उनका थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ कम लोगों ने बिल्कुल ही बेंच नहीं रखा होता, लेकिन प्रोडक्ट कंपनी में तो इट्स एब्सोल्युटली मस्ट कि आप ना उनको एक टाइम देते हो। और उसके बाद भी आप ना एक, मेरा अपना ये ख्याल है, ये जो 15-20% है कि आप क्वेश्चन दो, चाहे वो हॉबी प्रोजेक्ट करना है, चाहे वो उन्होंने ऑनलाइन कोई कोर्स करना है, वट एवर इज देयर लर्निंग स्टाइल। लेकिन देन अगर एक बंदा आता है, मैं इंटरव्यू में एक सीनियर बंदा इंटरव्यू करता हूँ और वो मुझे कहता है कि मैंने पिछले 3 साल में कोई बुक नहीं पढ़ी, कोई मूक का कोर्स नहीं किया हुआ, कोई मैं ज़्यादा पॉडकास्ट नहीं सुनता, मेरा कोई हॉबी प्रोजेक्ट नहीं है, सो दैट्स काइंड ऑफ लाइक अ रेड फ्लैग, ठीक है, कि अनलेस देयर इज अ जेन्युइन रीजन के मदर की बहुत तबीयत खराब थी, पिछले 2 साल से ये इशू चल रहा था, वो यू फाइंड आउट इन दोज एचआर इंटरव्यू। बट जनरली बहुत सारे लोग ना थोड़े प्रिविलेज नहीं है हमारे यहाँ जो आईटी के अंदर हैं। बहुत कुछ लोग होते हैं जिनको बाकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ शायद क्रीम भी चलानी पड़ती है, वो बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर लोग इतना है, कंफर्ट कंपनियाँ इतनी कंफर्टेबल रखती हैं कि दे है। सो अगर उस तरह के लोग जैसे अली कह रहे हैं कि अगर वो आफ्टर ऑफिस आवर्स चलें, ठीक है, डेली कम्यूट की वजह से लेट्स से उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, बट वीकेंड होता है, वीकेंड पे आप 4 आवर्स का टाइम रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। सो कैरियर अगेन इज बियॉन्ड वन कंपनी, और जो लोग अपने कैरियर में सीरियस नहीं है ना, तो कंपनी के लिए मेरे लिए वो रेड फ्लैग हो जाता है कि अगर दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर कैरियर विच इज बियॉन्ड दिस कंपनी, तो फिर ये जॉब पे कितने सीरियस होंगे, विच इज नॉट प्रोबेबली एन आइडियल प्रॉक्सी, बट इट इज देयर। या सही है, आप आप म्यूट म्यूट है। म्यूट है। एक और क्वेश्चन में हमारे पास है, आई वुड लाइक फाइजा टू आंसर दैट। आपने, क्योंकि आपके पास सारी लड़कियां जो है वो ग्रेजुएट नहीं आती, वो सम ऑफ देम आर FAFSC पास या अदरवाइज, डू यू थिंक के जो लैंग्वेज है दैट मे बी अ बैरियर इन लर्निंग एंड लोकलाइज्ड कंटेंट की अवेलेबिलिटी कैसी है? व्हाट डू यू थिंक के इसके हवाले से, मतलब ये कितना बड़ा बैरियर है लैंग्वेज का? ये लैंग्वेज का बैरियर है ऑफ कोर्स। हमारे पास 15 to 35 की एज लिमिट है। जिन लोगों को हम इनरोल करते हैं उसके अंदर बेसिक एजुकेशन मैट्रिकुलेशन रिक्वायर्ड होती है।
इवन दो हम एक ज़ीरो टेस्ट लेते हैं टू इंश्योर कि उनको अंग्रेज़ी पढ़ना आती है और समझ में आती है और वो बेसिक कंप्यूटर के ऑपरेशंस या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बावजूद जो है वो ऑनलाइन लर्निंग के लिए ऑनलाइन लर्निंग में जब हम देखते हैं तो लैंग्वेज का एक बैरियर आता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारी जो लोग हमारे पास लड़कियां आ रही होती हैं, उन्होंने पहले यूट्यूब या यहाँ वहाँ से सीखने की कोशिश की होती है, लेकिन वो लैंग्वेज के बैरियर की वजह से दे गेट डिस्करेज्ड एंड देन दे कम टू अ बूट कैंप वेयर someone who talks like them, looks like them is basically teaching them. तो लोकलाइज कंटेंट का मसला है। आप यूट्यूब इज़ one of my most favorite places to be in terms of learning because बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको वैसे ब्लॉग से शायद इतनी क्लियर ना हो जितना आपको यूट्यूब से समझ आ रही हो। तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे लोकलाइज कंटेंट कम है। वहाँ पे बहुत सारे यूजुअली मैं देख रही होती हूँ लाइव प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के कोडिंग के सेशंस हो रहे होते हैं, लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं अपने 4 लोग बैठ के मॉब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं एंड दे आर लाइव स्ट्रीमिंग दैट। You won't see that happen. Do local people doing that, talking about their experiences, teaching people, these things. तो वो localized content का एक मसला है हमारे यहाँ। लेकिन उसके साथ साथ उसकी फ्लिप साइड ये है कि बिकॉज लैंग्वेज स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो जिनको हम ट्रेडिशनल टर्म्स में कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, वहाँ का मसला है वो फिर ईमेल्स अच्छे नहीं लिख सकते, चीज़ें प्रेजेंट नहीं कर सकते। इफ़ दे वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर देन दैट आल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो हम इस चीज़ को कॉन्स्टेंटली मैं और शमीम डिबेट करते रहते हैं कि हम इसको कैसे रिजॉल्व करें। कभी हम ये सोचते हैं कि हम अदर देन जस्ट टीचिंग देम सम सॉफ्ट स्किल्स और बिजनेस कम्युनिकेशन की वर्कशॉप्स के अलावा हम उन्हें अंग्रेज़ी की भी कोई क्लासेस उनको दे दें, लेकिन आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल वाइल रनिंग अ कोडिंग बूट कैम्प। लेकिन लैंग्वेज ऑफ कोर्स इज़ अ प्रॉब्लम एंड वी रियली नीड लोकलाइज कॉन्टेंट, not just in Urdu but maybe in other regional languages as well. मैं क्विकली एक चीज कहूंगा कि थोड़ा सा ना रीजनल कंटेंट पे ना आई हैव एक्चुअली सीन लॉट ऑफ हिंदी कंटेंट एंड आई थिंक थोड़ा बहुत वोकैबुलरी का फर्क होता है, बट नॉट मैनी पीपल रियलाइज समटाइम्स कि इंडिया इज बिकॉज सच अ बिग कंट्री राइट नेक्स्ट वर्ड, उनके गूगल के इंटरव्यू के प्रिपरेशन की भी चीजें पड़ी हुई हैं, सिंपल डाटा स्ट्रक्चर्स की ऊपर भी पड़ी हुई हैं। सो आई थिंक सम ऑफ दीज कंटेंट कुड बी रिव्यूड बाय सम ऑफ आवर पीपल एंड जस्ट प्रमोट। ठीक है, मतलब देयर इज दैट नेशनलिस्टिक जो भी इश्यूज है, बट वी आर मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी अगर वो लोग हिंदी में बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वाइस वर्सा भी हो सकता है। आई नो अ कंपनी जो कि ACCA का कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं ट्यूशन का कराची में, एंड मोस्ट ऑफ देयर ट्रैफिक कम्स फ्रॉम इंडिया, उनके जो यूट्यूब पे और इन चीज़ों में, तो उसका फ़ायदा भी हम लोग उठा सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट सर्टिफिकेशंस? मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट हैं या और तरह की इवन दूसरे कोर्सेज भी हैं जिसमें कंप्लीशन के सर्टिफिकेट मिलते हैं। और ऑफन टाइम्स इट सीन कि वो जो कीज़ वगैरह होती हैं आजकल, तो आई माई सेल्फ सीन के आपको किसी भी टाइप की लेट्स से ऑर्गेनाइजेशनल नीड है एंड यू नीड 10 सर्टिफाइड पीपल, आप अपने लोगों को कहते हैं कि यार ये मुझे तुम महीने में सर्टिफाइड होके आओ और गेट दिस बेनिफिट, और वो somehow वो दे जस्ट गो एंड गेट इट, और वो विदाउट लर्निंग अ लॉट वो सर्टिफिकेशन लेना कोई उनके लिए मुश्किल नहीं होता। How effective are those certifications in your opinion, or do you value those certifications on a CV? No, they can't teach you skills. It's certification के साथ एक back and forth, एक और बहस हम ये कर रहे होते हैं कि उसकी वर्थ क्या है। It's similar to you just reading something and then reproducing it. A lot of certifications that I've seen, मैंने PMP की और इस तरह की certifications की हैं और देखी हैं. So a lot of it is just you reading things and just MCQs, and you can just prepare from Rita's book and get yourself PMP certified. It doesn't teach you the skills. It doesn't give you the depth of knowledge that is required to execute in your job day to day. It can be a shortcut for companies to pick up people who have invested in themselves, maybe, but you cannot sort of be confident on the person's skill set just by knowing that so they have so and so certifications. अच्छा, मेरा पॉइंट इस पे थोड़ा सा nuanced है. I think yes, there is a large number of certifications that are going to be very useless, but there is also a growing number of certifications now that are going to be useful.
एक मेरा बेंचमार्क ये है कि आपकी सर्टिफिकेशन में अगर कोई प्रोजेक्ट का कंपोनेंट था और आपने कोई असाइनमेंट सबमिट करनी थी और वो किसी ने आपको चेक करके असाइनमेंट पे ग्रेड देना था, तो आई थिंक दैट्स लर्निंग बाय डूइंग. आई थिंक दैट्स मच बेटर देन इफ यू आर जस्ट गोइंग टू टेक लाइक एन MCQs बेस्ड एग्जाम एट द एंड ऑफ द सर्टिफिकेशन. तो अगेन जो हम वो नैनो डिग्रीज वगैरह की बात कर रहे थे, उसमें आमतौर पर प्रोजेक्ट कंपोनेंट होता है. आपके पास एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट होता है या 2 कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपने डिलीवर करने होते हैं, और अगर वो आपने अच्छे तरीके से किए हैं तो फिर आप जो भी बंदा है या बंदी है, आप उससे पूछ सकते हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट में क्या किया था. एंड दैट्स यूजुअली यू नो प्रीटी गुड. लाइक इफ समबडी एक्चुअली कंप्लीटेड अ सर्टिफिकेशन वेयर देयर वाज अ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, वेदर इट वाज ऑन यूडासिटी, वेदर इट वाज दीज डेज ऑन Kaggle, उन्होंने Kaggle पे जाके कोई चीज़ बना के डाली है, उन्होंने Coursera या edX पे कुछ किया है, तो वो सारी वैल्यूएबल चीज़ें. एक चीज़ मैं कह देता हूँ, आई एम श्योर कि अगर कोई सोच रहा है कि यार अच्छा क्या मैं करूँ तो मेरी जॉब ऑलमोस्ट गारंटीड होगी, ये मैं और लोगों को बताता रहता हूँ, सर्टिफिकेशन से बहुत बेहतर चीज़ है. एंड आई कैन से विद रीजनेबल कॉन्फिडेंस के आसिम और सैयद जो जिनके बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं वो भी आपको हायर कर लेंगे. वो ये कि जाके ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करें. सो फाइंड एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट दैट यू फाइंड इंटरेस्टिंग, एंड देन इफ यू कम टू मी एंड से कि यार ये देखें इस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में ये मेरी 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सेप्ट हुई हैं, वहां पे आमतौर पे बार बहुत हाई होती है. वो आपका कोड अनलेस कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करके एक्सेप्ट करा दी है, वो उसका तो कोई फायदा नहीं है. लेकिन इफ यू एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड सम कोड दैट डज समथिंग and that code was accepted by an open source project, I think the likelihood that you're a good developer is much higher than if you've done a certification. So if the choice is between doing a certification or doing like some sort of an open source contribution, I'd say do the open source contribution. अच्छा, इसके I ऊपर agree. हम कंक्लूड करेंगे टू फाइंड आउट द टॉप 2-3 रिसोर्सेज और एरियाज टू इन्वेस्ट योर टाइम इन. मगर उससे पहले एक क्वेश्चन है जो कि शमीम ने किया, बट I've seen it quite a few times in our WhatsApp groups. So a lot of smaller companies complain a lot ke we spend so much on training employees and then they leave. For the bigger companies, तो वो अगेन वही बात है कि जो जासर अभी कह रहे थे कि इफ यू train your employees and they leave, but if you don't train your employees and they stay. But still ये एक जेन्युइन इशू है SMEs के लिए कि वो कैसे वो जब इन्वेस्ट करेंगे तो दे आर नॉर्मली स्टेपिंग स्टोन फॉर मैनी रिसोर्सेज के वो दे आर लुकिंग टू गो इनटू बिगर बेटर कंपनीज. और I've seen some of the companies even signing bonds कि जी आप नहीं जा सकते अगर आप, which I'm not really in favor of. But what do you think कि क्या इसका solution है? कंपनीज क्या करें? छोटी कंपनीज के एक तरफ वो इन्वेस्ट भी करें और फिर उनको वो ड्रेनेज भी ना हो. Frankly, there will be some bigger companies just looking at some such companies जो कि अच्छे लोगों को ट्रेन कर रही हैं और वहां से वो पिकअप कर लें. इसके अंदर एक तो यही चीज है कि ये पॉइंट बिल्कुल है जो मेरे ख्याल में काफी कॉन्वर्सेशंस में आया हुआ है विद व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैंने सुना हुआ है. और जितनी छोटी कंपनियां होती हैं ना, उतना ही उनको इस चीज से खौफ आ रहा होता है कि ट्रेनिंग की एम्प्लॉय छोड़ गया तो, और गुस्सा भी उनको इस तरह आ रहा होता है जैसे मतलब कि वो क्यों छोड़ के गया, जबकि एवरी राइट टू लीव. इसके अंदर ये एक तो ये चीज है कि एक तो कंपनीज को खुद भी ये रियलाइज करने की जरूरत है कि एंड आई रिफ्लेक्ट ऑन इट हियर इन माय कंपनी एज वेल कि जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तो उसका जो नेक्स्ट करियर पैथ है, करियर ग्रोथ है, वो भी उतना ही जरूरी है. आपने ये भी दिखलाना है कि अभी आगे क्या रास्ता जो चल रहे हैं वो उसमें आगे हम कहाँ जा रहे हैं, या आपने उसको कॉन्स्टेंटली उसको इंगेज रखना है उस इंडिविजुअल को. तो काफी एम्फेसिस शुरू में होती है कि ट्रेनिंग कर लें, एंड देन उसके बाद वाला एम्फेसिस गायब सा हो जाता है. और उसकी वजह से जो इंडिविजुअल है वो एक लेवल पे आके ये भी उसको लगता है, आई अज्यूम इन सम कंपनीज ये लगता होगा इन एसएमईज कि मैं यहाँ तक तो पहुंच गया हूँ, मेरे लिए अगला क्या चैलेंज है. तो एक आई एम फॉरगेटिंग द बुक जो मैंने एक पढ़ी थी, आई थॉट उसमें ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था. उसमें ये था कि भाई आपने ना हर एम्प्लॉय के साथ ना एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से करने जरूरी है. एनुअल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि 1 साल का आप कहें कि भाई इस साल में तुमने अचीव क्या करना है और ये एम्प्लॉयमेंट तुम्हारी 1 साल के लिए.
जब वो साल खत्म हो जाए तो अगले साल आपने कहना अच्छा अब हम 1 साल का फिर तुम्हारे साथ एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तुमने अचीव क्या करना है, तुम करना क्या चाहते हो। अच्छा, एक तो ये हो गया कि कंपनी ने क्या करना है, तो उससे कंपनी को होना चाहिए कि जो चीज़ वो इंडिविजुअल अचीव करना चाह रहा है, वो उसको ओवर देयर करियर उनको प्रोवाइड कर रहे हो। दूसरा इंडिविजुअल पे आ जाता है, वो इनिशियल जो बात भी हुई थी कि अगर कोई इस माइंडसेट से आता है ना कि मैंने ट्रेनिंग करनी है, मैंने सीखना है और वो डिलीवरी का उसको कोई फ़िक्र ही कोई नहीं है, तो वो अपनी ज़िंदगी वो काफ़ी अपना शुरू का करियर इसी तरह ही गुज़ार देगा और ऐसे इंडिविजुअल्स को हायर करते वक़्त भी ऑर्गनाइज़ेशंस को देख लेना चाहिए कि उन्हें हायर भी करना है कि नहीं, कि अगर उसने सिर्फ़ सीखने पे ही एम्फसाइज़ करना और डिलीवरी पे नहीं करना, बिकॉज़ इस पे डिस्कस हम कर चुके हैं। सो दैट बी माय पॉइंट। इसमें I would like to add my 2 cents in this. I think 2 areas where companies can really, smaller companies have an edge and they can make sure. एक तो their top management have a better chance to have to create closer bonds with the employees, जो कि larger companies के पास वो नहीं होती. So that means they can look into their aspirations and show them how their company can provide them with the direction जो aspirations वो चाह रही हैं. और दूसरा जो कंपनी कल्चर दे कैन क्रिएट, नॉर्मली बहुत बड़ी कंपनीज के अंदर उस तरह के कल्चर नहीं होता और कल्चर कैन बी अ स्ट्रॉन्ग थिंग एज वेल. सो अगेन जैसे हम क्लाइंट को रिटेन रखने के लिए और एक बिजनेस स्ट्रेटजी होती है पूरी, वैसे ही एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए you need to have differentiation, you need to have a strategy and what you're offering to the employees, and of course that needs to be a lot more than just the trainings. जी, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ इसी वाले पॉइंट पे अगर टाइम है। जी जी तो आई थिंक एक तो ये कि जो काफ़ी जिन लोगों की तरफ से कंप्लेंट्स आती है ना, कुछ जेन्युइन भी केसेस होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में मुझे लगता है कि द कंपनीज नीड टू, चाहे वो छोटी हैं या बड़ी हैं, दे नीड टू लर्न टू से गुड बाय। ठीक है, कि देयर आर समटाइम्स इफ अगर आप ना इस चीज़ को बहुत फर्स्ट बनाओगे ना कि यार हमने ट्रेन किया चला गया, आज ना हमने फ्रेश नहीं करना या इस यूनिवर्सिटी से नहीं करना या इस कंपनी से नहीं करने, सो यू आर बेसिकली अपना ही आप इंप्रेशन मार्केट में ये कर रहे हो कि आपके पास लोग जाते हुए या आपसे झूठ बोल रहे हैं कि हाँ नहीं सर हम कहीं नहीं जाएंगे और वो तो बाकी चले जाएंगे साल 2 साल बाद। ठीक है, तो देयर आर कंपनीज जो इंटरव्यू में कोई बंदा कहता है ना मेरा इरादा है कि मैंने मास्टर्स करना है 2 साल 3 साल, उसको वो आगे लेके नहीं चलते। सो दोस कंपनीज आर एक्चुअली जस्ट हर्टिंग देमसेल्फ, और इट्स नॉट जस्ट वो इतनी सी बात नहीं होती, वो पर लोग ना सोचने का ये इस पे ये कह रहे हैं तो 3 और चीजें भी हो जाएंगी। सो आई पर्सनली थिंक के 2-3 चीजें हैं, ट्रिक्स हैं। एक तो आई विल रियली लाइक यासिर टू शेयर कि इन्होंने किस तरह से सेंस ऑफ ऑनरशिप अपनी कंपनी में लेकर आए हैं। दैट्स ऑनरशिप कैसे आ सकती है, अगर एक कंपनी में लोगों में सेंस ऑफ ऑनरशिप है, एक मीनिंगफुल वर्क है और एक रीजनेबल कंपनसेशन है, सो फिर बहुत कम लोग जाएंगे और उसमें केस टू केस बेसिस पे आप देख सकते हैं कि वो क्यों गए, और मे बी इन सम केसेस इट्स गुड कि वो चले गए। सो लेकिन अगर ऑनरशिप नहीं है, वर्क मीनिंगफुल नहीं है और रीजनेबल कंपनसेशन नहीं है, तो डेफिनेटली नॉट, आप ये नहीं कह सकते कि हमने ट्रेन किया था। और बाय द वे बॉन्ड, पहली बात है आई डोंट नो वो इन्फोर्स भी कैसे हो सकते हैं पाकिस्तान में, और सेकंड थिंग ये कि वो जनरली अच्छे लोग टैलेंट को आपकी तरफ से रोकेंगी आने में, अनलेस के बहुत ही जॉब मार्केट खराब है। Chale, I would like to have a one last closing question, which should be very 1 word or 2 word answer by everyone. एक स्टैक ओवरफ्लो का एक जो सर्वे है डेवलपर्स के लिए उन्होंने किया, कहाँ से वो सीखते हैं, और उसमें देयर इन मतलब इसी ऑर्डर में रिस्पॉन्सेज हैं जो इंटरनेशनली डेवलपर्स कहाँ से सीख रहे हैं. I would go through them and I would like to ask from you कि आपके ख्याल में टॉप 1 या 2 एरियाज जहाँ पे लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करें टू लर्न या कंपनीज इन्वेस्ट करें, वो क्या है. सो नंबर 1 पे इसमें था सेल्फ टॉट, नंबर 2 पे लोगों ने लर्न किया मूक से, नंबर 3 वाज ओपन सोर्स का कंट्रीब्यूशंस, नंबर 4 वाज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एंड देन हैकेथॉन्स या ऑनलाइन कोडिंग कॉम्पिटिशंस, and then part-time in-person course classes ली, and then उसके बाद full-time जो boot camps होते हैं या training programs, they were lower, और सबसे end में certifications. So इनमें से अगर आपको choose करनी हो quickly two या 3 top 2-3 जिसमें लोग time invest करें, what would that be? यासिर?
आई थिंक थोड़ा सा तो जवाब मैं इसका पहले ही दे चुका हूँ। मेरे ख्याल में ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस आर अ फैंटास्टिक वे ऑफ लर्निंग। वहाँ पे कम्युनिटी भी होती है, उससे आपको मौका भी मिल जाता है, वो आपको सिखा भी देते हैं। अगर आप PR सबमिट करेंगे वो आपको बता भी देंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आई थिंक उसको मैं हमेशा बहुत हाई रैंक करता हूँ। MOOCs are a good idea, लेकिन again MOOCs with a kind of a twist, right? I already said कि यार do MOOCs where there's a project or assignment component and there's some mentor assigned to you ताकि वो आपका काम देख सकें। आमतौर पे वो काफ़ी अच्छी कोडिंग प्रैक्टिसेस भी सिखा देते हैं। और जो सेल्फ लर्निंग वाली चीज़ है वो तो इन सब के अंदर कॉमन है। सो Stack Overflow की वो कैटेगरी आई थिंक ज़रा कोई इतनी फेयर नहीं है। सेल्फ लर्निंग कैन बी थ्रू ऑल ऑफ दीज मैकेनिज्म्स, राइट? बाकी आई जस्ट वांट क्विकली बिकॉज आसिम आस्क्ड द क्वेश्चन कि ओनरशिप कैसे लोगों में करें। दो उसमें चीजें, एक तो सही आपने जो बात कही थी वो बहुत जरूरी है क्या, स्पेशली जब आप छोटी कंपनी है ना, तो यू हैव द लग्जरी टू हैव दैट वन-on-one रिलेशनशिप विद पीपल, राइट? सो डेवलप दैट रिलेशनशिप एंड देन वन अपशॉट ऑफ डेवलपिंग दैट रिलेशनशिप शुड बी दैट दे शुड हैव द कॉन्फिडेंस कि यार सिर्फ आप अपनी कंपनी की ग्रोथ और सक्सेस में इंटरेस्टेड नहीं, आप उस इंडिविजुअल की ग्रोथ और सक्सेस में भी इंटरेस्टेड है, इवन इफ इट टेक्स यू आउटसाइड, इफ इट टेक्स दैट पर्सन outside of your organization, and that should be completely fine. There is such a thing as a healthy turnover. So अगर आपके turnover में कोई भी छोड़ के नहीं जाता तो that's also pretty unhealthy. I think फायजा ने ये बात की थी. So just start getting comfortable with, you know, some turnover in your organization. That's totally fine. And tell people that their career matters to you, even if it takes them outside of your organization. ठीक है, ठीक है panelists, thank you very much. It was, I think, these kind of discussions need to happen a lot. We need to build culture of learning in Pakistan. We need to have communities. जैसे जासिर ने बात की, अगर जासिर कंपनी पाइथन पे काम कर रही है, they invest in पाइथन कम्युनिटी, 10 Pearls कर रही है, AI के ऊपर कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रही है. I think if all the companies contribute towards whatever area they are good with, so that would be really healthy for Pakistan. बाकी जो हमने discussions की, you know, onboarding के ऊपर, how we it's an opportunity to train people, मगर ये बात सारे agree कर रहे थे कि learning has to be hands on. सिर्फ एक बड़ी theoretical किस्म की learning इसका इतना फायदा नहीं होता. That's why companies में real projects पे काम हो रहे हो, real products पे काम हो रहा हो, that's how you really that's how you learn a lot. Mentors are important in company, or coaching by team leads, where people, team leads and coaches directly work with every resource in a company to coach them in their careers and learning paths. And then जो online MOOCs वगैरह हैं उसमें बात हुई कि अगर कोई nano degree से connected हो, there's some element of payment involved, or some other ways जिसमें आपको कोई ऐसा instructor assign होता है, that's more उसके results ज़्यादा बेहतर हैं. And then, you know, whatever people learn, make them present to the rest of the company. एक तरफ उनकी soft skills भी improve होंगी, दूसरी तरफ ये भी पता चलेगा कि उन्होंने कितना learn किया. और you know, we need to incentivize people कि वो दूसरे लोगों को ट्रेन करें. जो आपके अच्छे टॉप इंजीनियर्स हैं, they should have the incentives के दूसरों को ट्रेन कर सकें. So with that, I would say thank you very much for your time. रमज़ान में अब ईद आने वाली है. To everyone, पेशगी ईद मुबारक. और so thanks a lot. Allah Hafiz. Thank you, Sayyid. Allah Hafiz, everyone. Happy holidays and advance Eid Mubarak. Allah Hafiz. Eid Mubarak.